Mr. Anupam Gulati. Good morning. So nice to have you with us, sir. Thank It is you. my privilege to introduce you this morning. Thank you. Good morning. आज संडे का दिन है, खुशी का दिन है, मस्ती का दिन है और खेलों का दिन है और जितने हमारे नन्हे मुन्ने दर्शक, युवा दर्शक पूरे देश में हमें देख रहे हैं, आपको तो मज़ा खूब आएगा क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन है, तो स्कूल तो है नहीं और आज हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं नेशनल गेम्स में। आपको पता है ये 36वां नेशनल गेम्स चल रहा है और गुजरात के 7 शहरों में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से 7,000 एथलीट्स गुजरात में नेशनल गेम्स में compete कर रहे हैं और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कल के रिजल्ट्स के बारे में। तो कल जो है स्विमिंग का इवेंट हुआ और स्विमिंग के रिजल्ट्स पे एक नज़र मारते हैं। काफ़ी टाइट कंपटीशन था। 4x100 मेडले रिले मिक्स्ड में तमिलनाडु के धनुष और शक्ति और मनीष, इनको मिला गोल्ड मेडल। गुजरात को सिल्वर और श्रीहरि नटराज का बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, वो फेवरेट भी थे। 100 मीटर फ्री स्टाइल में उन्होंने जीता गोल्ड मेडल। विशाल ग्रेवाल दिल्ली के, उनको मिला सिल्वर और आनंद को मिला ब्रॉन्ज मेडल। आनंद सर्विसेज टीम के स्विमर हैं और सर्विसेज टीम की जो मेडल टैली है वो हम आपको कुछ देर के बाद दिखाएंगे क्योंकि पिछले 3 दफ़ा से वो डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हैं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और शिवांगी शर्मा असम की, उनको विमेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल मिला। हम कुछ ही पलों में अनुपम गुलाटी जी से पूछेंगे इन स्विमर्स के बारे में। सर, ये एक ऐसी स्पर्धा है स्विमिंग की जो पूरी दुनिया में मानी जाती है फॉर क्रिएटिंग गुड वर्क एथिक्स एंड इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग स्पोर्ट फॉर सो मेनी अदर डिसिप्लिन्स. How do you think was the performance of our swimmers yesterday? Well, I think outstanding. We've seen a few of the national games records being broken. I don't say national records, but you had some stellar performances on the pool. And I'm very happy you mentioned about the 100 meters for women, that girl from Sharma from Assam. She got the gold medal, beating the host state's favorite, Mana Patel. Mana Patel has already won 3 gold medals in the games for Gujarat. And as we all know, Gujarat hosting these national games, Sharad, for the first time. And they've got 10 gold medals. This has been their best performance. They are not considered among the top elite sporting states of the country, if we say so. But this has been their best performance in the games so far. And out of that, now Mana Patel has got 3 gold medals. So she lost out on this 4th one. She's got a silver and she would have been happy to come off as the reigning queen in the pool with 4 gold medals, but she's got 3. On the other hand, when we talk of swimming, that little 14-year-old girl from Karnataka, she is the one, Hashika Ramachandran, who has got already got 6 golds. So she is the, the crowning glory as far as the women's swimming is concerned. And mind you, a new games record of 4 minutes 32.17 seconds in the 400 meters freestyle. Now, the 14-year-old girl, tremendous potential, and in times to come, well, she's already made waves. She started off a few years ago in the national championships, in the age group swimming when she was 10 years old, 9 years old. And she's honing her skills very well, Sharad, and I'm expecting her to be representing India in international competitions not very far from now. She is on the right track. Also, on the other hand, the old warhorse, Sajan Prakash of Kerala. Remember the last time we had the national games in Kerala, where it was in 7 places, swimming was in Thiruvananthapuram. He ruled supreme there. Sajan Prakash, and was the most outstanding swimmer. But here he has already got 5 golds also. Mind you, the age factor is there. He was there in the Olympic Games in Tokyo. He was there in the Commonwealth Games as well. He's done very well. And you've spoken about the other swimmers. And I think on the whole, swimming, as you know, is the sport after athletics which gives the maximum number of medals. So you've got 3 of them who are the maximum medal givers, athletics, swimming and shooting. So, it's good that records need to be broken. I know swimming, India is nowhere in front of international world-class swimmers or even the Asian level, though we've got a couple of Asian Games medals. But
on the long run, India has still got a lot of catching up to do. But it's heartening, Sharad, that India, at least these games, it's a good fillip and a good platform for them to be excelling and breaking whatever marks there have been established in the earlier years. जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है कि गेम्स रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं और एक 14 साल की यंग स्विमर, मतलब शी इज अ चाइल्ड and she is creating a national games record. That is so ominous for Indian sports. We'll have a further discussion on that, but before that, let's have a look at the medals tally. Where do the teams stand? This is day 10 of the national games, the 36 national games. Let's have a look at how the teams are doing. Oh, there you can see the Services Sports Control Board leading that tally with 45 gold medals, followed by Haryana, another sporting powerhouse, Maharashtra with 28, Karnataka 23. I'm only reading out the gold medals. Tamil Nadu 22, Uttar Pradesh 19, Punjab with 15, Kerala, Manipur and Delhi all trailing there at 8, 9 and 10th position. So once again a dominant performance. Now if you have a look at the total number of medals, Maharashtra with 110 medals. That's a very, very good achievement for the athletes from Maharashtra. Haryana again a powerhouse, which is at number 2 at this stage, sir. They had a very good performance in the Commonwealth Games. Yes, absolutely. They've been the most outstanding overall. If you look at the medals tally, it was Haryana which contributed the maximum number of medals in these games. And it's been happening as a a continuity factor. Now, when we were looking at the medals as of now at Gujarat, if you compare them to the last national games, it's a good thing to compare to see where exactly you stand. And we know that the services have been winning the title for the last 3 editions of the national games. I have no doubt that they are head and shoulders above the rest of the competition here. So they will be on number 1 of the leaderboard. Now, as you mentioned about Haryana, last time Kerala was number 2. They were hosting the games. They were number 2. They had 162 medals. Now, if we have a look again at that medal tally, see where they have slipped. And Haryana were number 3. They have come up to number 2. So these are comparisons which we need to draw and then to analyze what's gone wrong where. Yes, absolutely. Statistics and medals tallies and records, these are not just numbers, because all of these statistics lead to some conclusion. Now, records being established, whether they are national records or national games records being established, which means old records being broken, new ones being established, it means there is an improvement in the athlete's performance, which is now a new record. And the second thing, sir, is when you're looking at the medals tally and you're seeing this progression of states like Haryana and some states falling down, it shows what's happening with the sporting environment in that state. Yes, absolutely. So it's a very important. It's very surprising because Kerala we have always associated with sport both for men and women. They've ruled supreme in athletics. Now look where Kerala is here. Now where do they come? They are down to number 8. And you see, Sharad, how many medals they've got in totality? 44. 44. You know what were there in the last edition? 162, out of which there were 54 gold medals. Now, when we look at the services here, right on top, you're looking at 40 odd in the gold medals. But in Kerala, they had 91 and a whole totality was 159. Now, they are still got a little bit of catching up to do, but a few days still to go. The boxers will come and get them medals, I'm sure. The others will as well. But what is disappointing from my point of view is the performance of Kerala. Well, along with Kerala, sir, I think Punjab also was once a renowned powerhouse of Indian sports, and to see them so low down in medals. Punjab was 93 medals the last time in Kerala 7 years ago with 27 golds. Now just see the comparison. Yes. So these are important indicators. The medal tallies are not just for counting the numbers and seeing my state did better than yours, but it's also an indicator as to what is happening to the sports infrastructure, the coaching infrastructure, the entire ecosystem of a sports, whether it is progressing in that particular state or it is being neglected to an extent. So the good part is, as we saw on that table, both Haryana and Maharashtra
are there maintaining their sequence and the position, so to speak, up and down, one or two doesn't really matter, but it's the steady graph as far as the medals overall tally is concerned. So, in a short while from now, we'll have a look at the schedule of today's events. लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो नए नए रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं और खासकर ये रिकॉर्ड्स कौन बना रहा है, ये हमारे युवा एथलीट बना रहे हैं. जो हमारे एस्टैब्लिश्ड चैंपियंस हैं वो तो है ही हैं, लेकिन गेम्स रिकॉर्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय यंग एथलीट्स. तो इसका ये मतलब है कि जो पिछले कुछ सालों से स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में जितना फोकस आ रहा है पूरी कंट्री का गवर्नमेंट की लीडरशिप की वजह से और पूरा जो माहौल उजागर हुआ है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में, तो इसके रिजल्ट्स अब जो हम देख रहे हैं कि हर इवेंट में you are having new records being created. Absolutely correct, Sharad. I couldn't agree with you more. Now, when we look at the overall thing now, when we say that in every multi-sport competition, they say athletics is the mother of all sports, right? What is heartening is that in these games, during the athletics, both track and field, 27 new games records have been established, 27, including 2 national records in both the men's pole vault and the women's pole vault. So, that is a good heartening thing, and the fact that some medals, some records, you remember Bahadur Prasad, 1500, after how many years his record has been broken. Tintu Luka, the 800 meters, her record has been broken over many years. There are lots of records which have tumbled, and that is the heartening factor. And I am so happy that it's all begun a few years ago, and the crowning glory was all Tokyo Olympics, Neeraj Chopra also. Even though in javelin the record didn't come anywhere close to what it was, but look at a wide canvas of records, both in sprints, in jumps and in throws. Yes, so while we are talking about all the positive outcomes of new records being created, there's another observation which we can't ignore. Most of our athletes are coming from rural backgrounds, and it so happens that the infrastructure in urban schools is much better than the infrastructure in rural schools. So, here is something that the leadership, the authorities, the sports authorities at every level need to have a look at. Our best schools in terms of infrastructure are located in cities, but we have most of our national level athletes coming from rural backgrounds. That disparity, that is a gap area which needs to be addressed. That is a gap area, as they say, catch them young, which is a fact. Of course, the government has gone ahead by making sports universities. Now, you got one in Manipur coming up in UP, in Gujarat also there is one. So, similarly, you got them, the infrastructure needs, it's a slow and steady process. Nothing is done overnight, but the overall results will show as we move on in the next few years, and I am positive if you got the dedication of the coaching staff, the never say die approach of the administrators, and it's a give game, nothing to take away, contribute and give, and then the nation building automatically will happen. It is happening, and I am sure nothing better than the sporting field, caste, creed, everything, no barriers. It is all one national holistic approach, and I'm sure we've seen in the last Olympic Games India's best performance in as far as medals are concerned, and I'm sure in the next Olympics in Paris and thereafter in LA, things will only improve. अनुपम जी, मैं आपकी भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूँ. मैं तो बार बार ये बोलता रहता हूँ, पूरे देश में जितने हमारे माता पिता हैं, जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन हमेशा एक ही रहा है कि बच्चों को खेलने से कभी मत रोकिए. जब बच्चे खेलते हैं, पूरे विश्व में किसी भी समाज में आप चले जाइए, जब बच्चे खेलते हैं तो खुश होते हैं. जब कोई भी इंसान खुश होता है तो वो मेहनत करता है, उसको थकान महसूस नहीं होती. मेहनत करता है तो उसको रिजल्ट्स आते हैं, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर वो और मेहनत करता है और फिर और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. इस तरीके से एक सकारात्मक जो है ना प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और यही सबसे बढ़िया
स्पोर्ट्स का आउटकम होता है फॉर सोसाइटी एंड फॉर नेशन। और आगे बढ़ने से पहले अब हम देखते हैं आज का शेड्यूल, क्योंकि आज काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं और एक नज़र डालते हैं आज के शेड्यूल पे। संडे का दिन है, खुशी का दिन है, और देखें आज नेशनल गेम्स में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले मलखम्ब के इवेंट्स खेले जाएंगे। मलखम्ब के मैचेस हैं 9:30 बजे से, और उसके बाद ध्यानचंद हॉकी ग्राउंड राजकोट में हॉकी के मैचेस हो रहे हैं। वॉलीबॉल भावनगर में, हॉकी के फिर से मैचेस होंगे दोपहर में 3:30 बजे, और 4 बजे से फुटबॉल, मेंस फुटबॉल अहमदाबाद में खेले जाएंगे, और बहुत ही शानदार स्टेडियम्स बने हैं गुजरात में। तो देखिए सर, सबसे पहले तो अनुपम जी मलखम्ब का खेल, उसके बाद हॉकी, वॉलीबॉल, हॉकी, तो आज ज़्यादातर फील्ड स्पोर्ट्स हैं जी। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। मलखम्ब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है अलॉन्ग विद योगा, जो एज अ मेडल स्पोर्ट इन दीज नेशनल गेम्स। तो बड़ा आर्टिस्टिक होता है। आप जानते ही हैं मलखम्ब का मतलब, मल्ला का मतलब होता है रेसलर, और खम्ब का होता है पोल, जो खम्बा होता है। तो उस पे वो कैस्टर ऑयल लगता है, और बड़ा ही इंडिजिनस स्पोर्ट है, जिसकी रूट्स भारत में ही स्टार्ट हुई थी। ये मध्य प्रदेश में पहली बारी जो ये खेला गया एट अ कम्पिटिटिव लेवल, वो दिल्ली में जो रेलवे स्टेडियम है पहाड़गंज में, 1958 में वहाँ नेशनल जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप के उसके अंदर इट वाज एन आइटम इन दैट। बट 1962 ग्वालियर में इसकी अपने आप नेशनल चैम्पियनशिप स्टार्ट हो गई, और बहुत ही लोकप्रिय खेल है ये, खास करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया में बहुत है। अब सारा भारत में उसका काफ़ी मूवमेंट एंड एक्सपेंशन हुई है। तो इट इज़ अ गुड स्पोर्ट, and very where the competitor is showing his yogic skills, his artistic skills on that pole। 3 किस्म की होती है वैसे, रोप का भी होता है, एक हैंगिंग मलखम्ब भी होता है। तो इट इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी आर्टिस्टिक। सर, ये मलखम्ब का जो हमारा खेल है, हमारा इंडिजिनस स्पोर्ट है, हिंदुस्तान का स्पोर्ट है, ये इतना बेहतरीन फाउंडेशनल स्पोर्ट है जी। और इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं आपको। एक खंबा क्रिएट करना है, सबसे ज्यादा आपको कोचिंग की जरूरत है। और मेरा तो ये सपना है कि पूरे देश में हर स्कूल में मलखम्ब हो, हर स्कूल में मलखम्ब हो। जरा सोचिए क्या फिटनेस हो जाएगी हमारे बच्चों की। और शरद, उसको देखने में कितना मज़ा आता है। मुझे तो बहुत आनंद आता है व्हेन आई सी यू नो द पोस्चर्स, द बैलेंसिंग, एवरीथिंग। एंड माइंड यू, उस पर सारा ऑयल लगा होता है, तो द वे दे स्लिप अप एंड क्लाइम अप ऑन दैट, स्लिप डाउन, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। तो चलिए, अब समय आ गया है गुजरात में फुटबॉल एक्शन देखने का, और अब हम चल रहे हैं सबसे पहले मैच के लिए लाइव फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम द 36 नेशनल गेम्स हैपनिंग इन गुजरात। नेशनल गेम्स के प्रस्तुतकर्ता अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। जासा, दीपा नायक, मुनीसा मिन्स, मनीषा नायक, जसोदा मुंडा, ये है टीम उड़ीसा की। तो किक ऑफ के लिए इस समय तैयार। उड़ीसा की तरफ से किक ऑफ बैक पास के साथ ही शुरू होता हुआ, दाईं तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास इस समय राइट विंगर की पोजीशन से, लेकिन बैक पास के रूप में गेंद वहां पर पहुंचती हुई, गेंद को इसी बीच संभाला है वहां जूली किशन ने। दाईं तरफ एक बार फिर से वहां पर गेंद को निकाला था कप्तान मनीषा पन्ना के लिए, लेकिन मनीषा पन्ना का क्रॉस वहां पर काफी कमजोर। एक बार फिर से गेंद पहुंचती हुई दूर वाले छोर पर। शुरुआती क्षणों में दाएं छोर से आक्रमण करने का प्रयास इस समय उड़ीसा की टीम की तरफ से, लेकिन लेफ्ट फुल बैक ने वहां पर आसानी के साथ गेंद को क्लियर कर दिया, और गेंद को वहां पर थ्रू पास के रूप में इस समय निकाला है दूर वाले छोर पर। साथी खिलाड़ी इस समय तमिलनाडु की टीम के एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए इस समय पी संध्या के पास गेंद पेनल्टी बॉक्स के अंदर, गेंद को बढ़ाना चाहती थी
अपने साथी खिलाड़ी संध्या रंगनाथन के लिए, लेकिन बीच में ही गेंद प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी से लगी और गेंद गोल रेखा को पार कर गई। संध्या रंगनाथन की यदि बात करें तो टीम की प्रमुख स्ट्राइकर हैं और आज का पहला फ्लैग किक इस समय वहां पर तमिलनाडु की टीम के पक्ष में। एम मालविका ने वहां पर गेंद को रखा और तैयार, फ्लैग किक पेनल्टी बॉक्स के अंदर और सीधा हेडर, वहां पर गोल रक्षक को हिलने तक का मौका नहीं। और इस तरह से तमिलनाडु की टीम ने शुरुआती मिनटों में ही ये सफलता हासिल कर ली। अभी खेल का मात्र दूसरा मिनट है और पहले ही फ्लैग किक पर ये देखिए किस तरह से वहां पर हवा में तैरती हुई गेंद पहुंची थी और सीधा हेडर के द्वारा। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। For a throw in favor of Tamil Nadu. Tamil Nadu getting just the start they wanted, and they're playing exactly the way they're supposed to be. They're very, very good and accurate with their set pieces, and of course you'll see a lot of movement down both the wings. Tamil Nadu playing a 4-2-4. Much like Manipur, they're going all out. 4 attackers: Sandhya Ranganathan, Nandini, Sandhya, and of course Yuvrani. Meanwhile, Odisha have packed the midfield a little bit more. 4-3-3. And the 3 strikers, of course, Manisha, Deepa, and Jhasa. Let's see who finds the net for them. In the meanwhile, it's Tamil Nadu in the driver's seat. A goal ahead. A touchline tussle there. Does she snatch it? No, she doesn't. She's able to. Quick pass back to the goalkeeper. From there, you want to rotate the play. Of course, 3 in front. It's not a very, very good pass. Still managing to get it back. Monica Mins onto the left. Manisha. Quickly stirring it, sending it wide to Bonna. Quick crossfield. Trying a bit of fast-ish into play. But of course, the ball going out of control and outside the touchline, which means another throw in for Tamil Nadu. Tamil Nadu trying to pick up the pace. Pavitra with a quick throw. Up the centre. That's not a good pass. They have to be playing a bit more error-free football because Odisha will look to come back hard and strong right away. Off they go from the right flank. Coming to the inside channel. Bonna still on the ball, being challenged. Bonna still holding fort. Hemmed in by 2. Bonna still on the ball. That takes something to be still on the ball. And that's the goal. The moment we saw Priyadarshan take them ahead. What a set piece it was. Meanwhile, of course, with that goal, they'll not be happy. They'll want much, much more. Tamil Nadu trying to change the state of play, going a little wide on the outside right channel. This time, though, again, the ball has gone outside the touchline for a throw-in for Odisha. Odisha trailing by a goal to 0. Just 5 minutes into the second semi-final, and that's a quick intervention there. She'll have to be very, very careful because we've seen at very, very crucial times teams have conceded free kicks which have resulted in danger to their goal post. So Malvika it is. Will she swing it to the far post? 5 attackers inside the box. Off goes Malvika, but that's straight to the keeper Spandita. Ashish. 1-0 की बढ़त इस समय तमिलनाडु की टीम के पास, जबकि कप्तान उड़ीसा की इस समय मनीषा पन्ना थ्रू पास के रूप में गेंद को पहुंचाया था अपने राइट विंगर के स्थान पर, लेकिन गेंद उनके पांव से लगती हुई बाहर की तरफ चली गई और ये थ्रो इन इस समय तमिलनाडु की टीम के लिए अपने ही हाफ के अंदर।
बाईं तरफ से प्रयास, लेकिन मनीषा ने एक लंबा किक लगाकर गेंद को पहुंचा दिया है इस समय तमिलनाडु के हाफ में। और पहली मर्तबा तमिलनाडु की गोल रक्षिका एस नारायण स्वामी ने गेंद को वहां पर अपने कब्जे में किया और एक वॉली शॉट लगाकर गेंद को पहुंचा दिया इस समय ओडिशा के हाफ में। मध्य रेखा के आसपास गेंद पर अपना कब्जा करने की कश्मकश इस समय होती हुई, जबकि ओडिशा की मध्य पंक्ति की मोनिका मिन्स के पास इस समय गेंद, अपने कप्तान के लिए गेंद को निकाला, लेकिन वहां पर छीना गेंद को देना चाहते थे वहां पर रंगनाथन के लिए, लेकिन रंगनाथन थोड़ा सा पीछे थी और गेंद इसी बीच संभाली वहां पर पी संध्या ने। देखना है कि क्या वहां पर ड्रिबल करने में कामयाब रहेंगी। लेफ्ट फुल बैक का बिल्कुल उनके साथ चिपके हुए झबामणि टुडू, कोई अवसर नहीं, लेकिन एक बार फिर से गेंद को अपने कब्जे में उड़ीसा के खिलाड़ी वहां पर कामयाब होते हुए। मनीषा नाग के पास गेंद उनसे होती हुई पहुंची इस समय दूर वाले छोर पर युवा रानी के लिए। युवा रानी गेंद को लेकर तेजी से आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन साथ उनके बिल्कुल परछाई की तरह चिपके हुए हैं इस समय ओडिशा के खिलाड़ी मनीषा पन्ना। थ्रो इन इस समय ओडिशा की टीम के लिए। ओडिशा की टीम 1 गोल से पिछड़ी हुई तमिलनाडु के खिलाफ अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रही थी जहां तक लीग मुकाबलों का सवाल है। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। वॉली शॉट लगाकर फिर से गेंद को पहुंचा दिया वहां पर उन्होंने ओडिशा के हाफ में, और बहुत बढ़िया थ्रू पास वहां पर निकाला है। क्या कामयाब हो पाएंगी वहां पर पी संध्या, लेकिन सीधा गोल रक्षक के हाथ में उनका ये शॉट। अच्छा पास था, कोशिश अच्छी थी, पी संध्या गेंद तक पहुंची भी, लेकिन गेंद को सीधा खेल बैठी गोल रक्षक के हाथ में। तमिलनाडु को खेल के दूसरे मिनट में जो गोल उन्होंने किया उसकी बदौलत इस समय 1-0 की बढ़त हासिल है। एक बार फिर से पेनल्टी बॉक्स के ऊपर अवसर और उसके साथ ये गोल, दूसरा गोल वहां पर होता हुआ तमिलनाडु की टीम की तरफ से संध्या रंगनाथन, जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में इससे अजनबियों को पल में अपना बनाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। The quick, super fast and super efficient football there. Up by 2 goals within the first 10 minutes, and very good finishing there. But one has to question the centre backs with so much of space between them. Yet again, long cross field on the right. Will she be able to control it? Yes, she does. Sandhya centers, misses a compatriot. Wouldn't mind though. Up by 2 goals in the 10th minute itself. Tamil Nadu being very, very proactive there. That's a foul.
Referee Kanika Burman calling for an infringement. So quick free kick awarded very close to the central line. Kanika Burman keeping a strict eye on the proceedings. We'll have to see how Odisha come back into the game. The skipper, Manisa Panna, on the ball now. What does she do? She's got a straight line of 5 attackers close to the box. She goes for the long straight feed, a little to the wide left channel for her namesake Manisha, but it was a little too far away from her and Soumya, Tamil Nadu goalkeeper and captain, collecting it safely and pushing it forward. Off they go, Tamil Nadu. There's been a slight collision there, and immediately referee Kanika Burman stopping play just to make sure that the collision and the impact and the injury is not very serious. Of course, she'll be given some medical attention. I'll try and get you a replay of what exactly happened as she went for the ball. She had a back to the goal. There was a collision there. It seems that she is back on her feet. Thankfully, nothing serious. But what a cracker of a start. Sunday morning football. This is exactly what it's meant to be. 2 goals in the first 10 minutes. First strike from Doordarshan in the first minute itself, and then in the 10th minute. All right, just trapping it. Manisha losing possession of the ball, and they're not being able to keep the ball for themselves for long enough. Sandhya Ranganathan pacing it down on the left. From there, it's a long ball. Bouncing into the goal penalty box. Yuvarani with the overhead feed. The clearance is not good enough. Tamil Nadu still on the ball. Surging forward. Nandini going a little too wide. There she's been tackled there. A little rough it seemed, the challenge, Ashish. जी हाँ, थोड़ा सा रफ टैकल ज़रूर था और निश्चित रूप से यहाँ पर जो मैच रेफरी हैं उन्होंने बहुत आसानी के साथ उसे नोटिस भी कर लिया और ये फ्री किक इस समय तमिलनाडु की टीम के लिए एक और अवसर है वहाँ पर, जबकि मालविका तैयार, एम मालविका अब तक ज़्यादातर फ्री किक्स जो हैं वो अपनी टीम के लिए इस मैच में वही लेती आ रही हैं। अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए पेनल्टी बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पास और वहां पर कोशिश जरूर की थी, बिल्कुल गोल रक्षक के आगे खड़ी हुई थी वहां पर संध्या रंगनाथन की गेंद को लेकर के 360 डिग्री टर्न करें और गोल करें, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं हुई। और इस समय वहां पर उड़ीसा की टीम के खिलाड़ी दाईं तरफ से आक्रमण बनाने की चेष्टा करते हुए, लेकिन मध्य पंक्ति ने बीच में ही गेंद को आसानी से रोक लिया। प्रियदर्शनी ने फ्लैंक बदलने के साथ गेंद पहुंची पी संध्या के पास, पेनल्टी बॉक्स में प्रवेश उनका, क्या क्रॉस आएगा? जी हां, क्रॉस करने की कोशिश जरूर की, लेकिन सीधा जाबामणि टूडू के पांव से लगती हुई गेंद बाहर चली गई और ये थ्रो इन इस समय तमिलनाडु की टीम के लिए। 2-0 की बढ़त इस समय तमिलनाडु की टीम को हासिल है उड़ीसा की टीम के ऊपर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में, जो कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत इकाइरीना ट्रांस स्टेडिया पर खेला जा रहा है अहमदाबाद में। थ्रो इन के बाद एक बार फिर से वहां पर पेनल्टी बॉक्स के अंदर प्रवेश जरूर, लेकिन गेंद डिफ्लेक्ट होने के साथ ही बाहर निकली और गेंद को वहां पर लेफ्ट फुल बैक ने आसानी के साथ इस बार क्लियर कर दिया। लेकिन तमिलनाडु के खिलाड़ी अभी भी गेंद को अपने कब्जे में बनाए हुए पास निकालना चाहा था इस बार वहां पर मालविका ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन प्रियदर्शनी वहां पर थोड़ा सा दूर थी और गेंद उनकी पहुंच से बाहर थी। गेंद थ्रो इन के लिए इस समय उड़ीसा की टीम के पास। उड़ीसा की टीम अब तक बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई नज़र नहीं आई है अपने खेल से इस मुकाबले में। तमिलनाडु की टीम का अब तक अगर मैं कहूँ कि वर्चस्व रहा है शुरुआती 14-15 मिनट में, तो शायद गलत नहीं होगा। सेंटर बैक के स्थान पर गेंद को संभाला, थ्रू पास के रूप में देना चाहते थे। गेंद इस समय सुप्रिया राउतरे के पास, सुप्रिया राउतरे से गेंद को छीनने में कामयाब वहां पर युवा रानी, और युवा रानी का वहां पर क्रॉस, लेकिन सीधा गोल रक्षिका के पास पहुंचता हुआ सपंदिता दास ने गेंद को अपने हाथों में कैद किया और गेंद को बढ़ा दिया एक छोटे से पास के रूप में बाना कविराज के लिए। बाना कविराज ने गेंद को वहां पर निकाला है मोनिका मिन्स के लिए। मोनिका मिन्स ने इस समय गेंद को निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। दाएं तरफ से फिर से आक्रमण करने का प्रयास, अभी तक जितनी भी कोशिश हुई है वहां पर उड़ीसा की टीम की तरफ से आक्रमण बनाने की, वो तमाम दाएं फ्लैंक से हुई हैं, जबकि दाईं तरफ से मनीषा पाना इस समय ओवरलैप करते हुए आगे की तरफ आ गई थी, लेकिन गेंद इसी बीच वहां पर बाहर चली गई टच लाइन से। और ये थ्रो इन इस समय उड़ीसा की टीम के लिए। कप्तान मनीषा पाना इस समय ये थ्रो इन लेती हुई
थ्रो इन के बाद एक बार फिर से गेंद उनके पास है, गेंद को निकाला प्यारी झांसा के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उड़ीसा की टीम की तरफ से इस समय खेल रही हैं। इसी बीच गेंद उनसे छीनी एंड नंदिनी के पास लंबा डाउन द लाइन पास, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी के लिए वहां पर नंदिनी जो कि पहुंची थी उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे गेंद निकल गई। लेकिन एक बार फिर से तमिलनाडु की टीम कब्जा करके गेंद पर आगे बढ़ने का प्रयास करती हुई, लगातार डोमिनेंस रहा है अब तक। कहीं ना कहीं मैच पर अपनी पकड़ बनाने में पूरी तरह से तमिलनाडु की टीम कामयाब रही है, लेकिन इस बार प्रत्याक्रमण का मौका वहां पर प्यारी झांसा के पास, गेंद समानांतर पास के रूप में गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी की तरफ, गेंद को संभाला मनीषा नायक ने। क्या मनीषा नायक वहां पर समानांतर पास देंगी? जी हाँ, वहां पर पास, और एक बार फिर से झांसा के लिए गेंद को निकालना चाहते थे प्यारी झांसा, जो कि बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स के मुहाने पर मौजूद थी। गेंद उन तक पहुंची नहीं, और दाईं तरफ से एक बार फिर से आक्रमण बनाने की कोशिश वहां पर मनीषा पन्ना के द्वारा पेनल्टी बॉक्स के अंदर, उनका ये चिप, लेकिन प्यारी झांसा काफी दूर रह गई और बाकी का काम पूरा कर लिया गोल रक्षिका एस नारायण स्वामी ने, जो कि टीम की कप्तान है। तो इससे पहले कि गोल किक हो, वहां पर इधर माइक्रोफोन पर परिवर्तन होता हुआ अंग्रेजी में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एस श्री कुमार। आज सुबह पहली बार स्वागत है श्री कुमार आपका। Thank you, Ashish, and a very good morning to all of you, ladies and gentlemen. A quarter of an hour gone in the game. The second semi-final between Orissa and Tamil Nadu. That could be a near thing over there, but the Tamil Nadu captain, Narayan Swamy, the goalkeeper, coming out of a charge to intercept Pyari Shasha over there, and the two of them colliding in that tackle over there. There you see the replay of that incident inside the Tamil Nadu box. There it is, and that over-the-top tackle there by Pyari on the goalkeeper, and a foul. The goalkeeper still lying on the ground over there. And in the meantime, to tell you the story of the first 15-16 minutes of this match. डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। 50 सालों से जो बना हर मेज की शान, वो है अमूल चीज। हर दस्तरखान पे बनाया अपना अलग मकाम, वो है अमूल चीज। कहीं लूटी शाही वाहवाही तो कहीं बना दिल की जुबान, वो है अमूल चीज। भारत की लजीज विरासत का एक अजीज नाम, वो है अमूल चीज, जिसे हर किसी ने प्यार से कहा, ये मेरा चीज है। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। Sandhya Ranganathan, Nandini and Yuvrani, and the Orissa defense certainly under pressure to block this foursome here. Tamil Nadu employing a 4-pronged attack, and that shows you how strong they are in the attack. So at the moment, a stray red there by the Orissa team on the far side of the field over there, with Manisha Naik chasing that ball on the left flank at the top of the box. She still has it with her. There she is, trying to work her way past. Coming into the center of the field over there, gives it in the center, but cut away nicely there by the number 9 for Tamil Nadu, the goal scorer Doordarshan, and the ball ricochets to the midfield there with Malvika having a long shy at the goal, but straight to the goalkeeper Soumya Narayan Swamy, who has no difficulty in collecting that lob. There comes the goalkeeper's clearance right into the center circle there for Sandhya Ranganathan, but headed away on the far side of the field for Yuvrani. Yuvrani with the ball there, but in the meantime it's the Orissa right wing back Manisha Panna who puts the ball over the line for a throw in to Tamil Nadu from deep inside the Orissa territory on their left flank. So it's Orissa 0, Tamil Nadu 2 at the moment, and Tamil Nadu looking very, very compact and confident as they play out the remaining time of this match over here. Certainly Orissa have a job to do to get back into the game. Right now the ball inside the Orissa territory itself, but dispossessed there is the wing back Panna by the captain, the striker Nandini, but in the meanwhile the ball goes over the line there off the foot of Manisha Panna, and a throw into Tamil Nadu from just near the center line on their left flank.
the left wing back of Tamil Nadu. Pavitra taking the throw in, tries to find Nandini there, doesn't succeed. The ball ricochets back to her. Long clearance by her at the top of the penalty box over there, cleared away by the Orissa stopper Jabomani Tudu, and another interesting lob brought to naught over here by the Orissa defence. It is trying to keep the Tamil Nadu attack at bay. Another long pass on the far side, but going straight to the Orissa right wing back Manisha Panna, the captain of the team over there. And this time losing out is the Orissa team, and the ball on the right flank for P. Sandhya, the right winger. There she is, active all the time into the box, but she can't beat the wing back Supriya Rothre, who disperses her. Supriya with the ball there, but Supriya's ill-directed pass is cut away nicely there by Malvika. Malvika on towards the left flank for Sandhya Ranganathan. Sandhya Ranganathan gives it on the right towards the striker. That's Priya Darshini, and Darshini coming up with a long shot from outside the 18-yard box there, but goes straight to the goalkeeper, the Orissa custodian Spandita Das, who collects and makes that clearance. And it's Tamil Nadu 2, Orissa 0. What do you think of this match, Mahesh Tiwari? धन्यवाद श्री। और जिस तरह से यहाँ पर खेल रही है इस समय तमिलनाडु की टीम, जिन्होंने 2 गोल इस समय अर्जित कर लिए अपनी टीम के लिए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर निश्चित रूप से एक जीत के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, क्योंकि पहला गोल उन्होंने दूसरे मिनट में ही कर लिया था प्रियदर्शनी द्वारा, उनके द्वारा 1-0 की बढ़त प्राप्त हुई थी। उसके बाद संध्या रंगनाथन ने दूसरा गोल किया था 10वें मिनट में, 2-0 की बढ़त वहाँ पर प्राप्त हुई है, और तब से लेकर एक हावी होकर खेलती हुई नजर आई है तमिलनाडु की टीम। वहाँ बॉक्स में थोड़ा सा संघर्ष चलता हुआ पोजीशन लेने का, तिरछा पास वहां पर गोल पे डालने की कोशिश की थी, और गेंद जाकर बिल्कुल कगार पर रुकती हुई नजर आई, और खिलाड़ी अभी भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से दागने की, सफल नहीं हो पाई। और निश्चित रूप से नंदिनी ने एक अच्छा प्रयत्न किया था, लेकिन ताकत जो लगनी चाहिए थी, जो बैक फुटेड किक उन्होंने ली थी, वो गोल पोस्ट तक पहुंच नहीं पाई। उनके सहयोगी खिलाड़ी ने फिर वहां पर दागने की कोशिश की थी। देखिए यहाँ पर हुआ ऐसा कि रिफ्लेक्ट हुई वहां पर, और उसके बाद रोका वहां पर खिलाड़ी ने, और दूसरे प्रयत्न में वहां पर युवा रानी ने डालने की कोशिश की थी, वो प्रयत्न विफल रहा। 2-3 बार वहां पर कोशिश की गई 7 और 12 नंबर के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन सफल नहीं हुई। जो अन्यथा तीसरा गोल यहां पर साफ नजर आ रहा था यहां पर। और ये एक एरेना मैदान पर चल रहा हुआ ये मुकाबला जो ओडिशा और तमिलनाडु के बीच में खेला जा रहा है, यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत, और निश्चित रूप से 2-0 की बढ़त यहाँ पर तमिलनाडु के पक्ष में, जो हमारे बाईं छोर से सफ़ेद कपड़ों में वस्त्रों में जो नज़र आ रही है वो है तमिलनाडु की टीम, और लाल परिधान किए हुए वस्त्र जो है वो है ओडिशा की टीम। तो ये अच्छा संघर्ष देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो पोजीशन रहा है गेंद का वो तमिलनाडु ने अपने पास रखा है, तो ज़्यादा मौका यहाँ पर उड़ीसा को नहीं दिया। अभी कुछ 1 मिनट पहले ही मैं समझता हूँ कि तीसरा गोल जो वहाँ हो जाना चाहिए था वो होता हुआ नज़र नहीं आया। और निश्चित रूप से ये खेल आगे बढ़ता हुआ, अच्छा कोऑर्डिनेशन, ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, इस बार काफ़ी बाहर गोल लाइन के बाहर की तरफ जाती हुई गेंद। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जो मणिपुर और आसाम के बीच में खेला गया था, वहाँ पर मणिपुर की टीम ने 5-0 की एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। और जीतने वाली टीम इन ओडिशा और तमिलनाडु के बीच जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला होगा फाइनल में मणिपुर की टीम के साथ, और वो संभावित टीम लग रही है तमिलनाडु की। इस बार लंबा किक लॉब करता हुआ, और 11 नंबर की खिलाड़ी इस समय संध्या, बहुत खतरनाक तरीके से आज उन्होंने खेल यहाँ पर किया है, और बहुत ज़्यादा पोजीशन अपने पास, अपनी टीम के पास रखने में गोल लाइन के बाहर जाती हुई गेंद। और निश्चित रूप से ज़्यादातर पोजीशन जो देखने को मिला है वो ज़्यादातर उड़ीसा के हाफ में ही खेलता हुआ नज़र आया है। बहुत दबाव वहाँ पर नज़र आया गोलकीपर स्पंदिता दास के ऊपर, और तीसरा जो गोल होते होते बचा वो केवल उनके हाथ से डिफ्लेक्ट होने के बाद ही वहाँ पर बचा था, जबकि यहाँ पर किक लेने के लिए तैयार होती हुई गोल किक लेने के लिए स्पंदिता दास, सारे उनके जो खिलाड़ी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गोल पोस्ट से देखना है कि कहाँ पर गेंद आती है, लेकिन इस बार टच लाइन से बाहर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर तमिलनाडु की टीम हावी होकर खेल रही है और मजबूत तरीके से वो आगे बढ़ रही है। 4-3-3 का उनका फॉर्मेशन है इस मुकाबले में, और दूसरी तरफ ओडिशा की टीम 4-2-4 के फॉर्मेशन से खेल रही है। लेकिन इस बार जो खतरा वहाँ पर हो सकता था उसे पूरी तरह से एक पूर्वानुमान लगा के आगे दौड़ते हुए गोलकीपर स्पंदिता दास ने पूरा किया, ख़त्म किया, और सारी आशंकाएं जो शंकाएं वहाँ पर थी गोल की वो रद्द करवाई। एक अच्छा संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और
पलक झपकते ही खिलाड़ी एक पल से दूसरे पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष सेंटर लाइन की तरफ और आगे बढ़ने में लगे हुए खिलाड़ी। पास दिया अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास, बैक पास देकर आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन ज़्यादा देर तक पोजीशन तमिलनाडु की टीम तैयार नहीं है वहाँ देने के लिए उड़ीसा के पक्ष में, और पोजीशन अपने पास लेकर अब बिल्कुल बाएं तरफ से आक्रमण की भूमिका उनकी बनती हुई, लेकिन यहाँ पर वो स्पंदिता दास ने आकर रोका। Orissa escaping very narrowly there moments ago with the goalkeeper Spandita Das almost spilling over the line across from Sandhya Ranganathan. Luckily for her captain and right wing back Manisha Panna right there to bring off that goal line safe, and the score line still remains Orissa 0, Tamil Nadu 2. At the moment the ball inside the center circle over there, as you see on your screen, with a free kick in favor of Orissa. The stopper, Captain Manisha Panna, with that free kick, coming up with a long lofted pass on the far side, but there's no player around to take advantage of that lob there, and it goes harmlessly over the goal line for a goal kick to Tamil Nadu. So Tamil Nadu is certainly looking very, very confident and compact, not giving anything away in defence, with the Orissa team, of course, having some possession in midfield, but not being able to translate them into goals at the moment. But they do have it in them. They defeated Gujarat by 11 goals to 0, drew goalless with Assam. So certainly there are no pushovers. It's only a matter of time that they were able to get their act together and make a match of it in the second semi-final of the 36th National Games football competition. Let's see how much Orissa can succeed, but right now Tamil Nadu well in charge of the match over here. Pavitra with a header over there. There she is once again, coming up with a lofted clearance into the Orissa half, but cut away nicely there by the captain Manisha Panna once again. And this time it is the midfielder Doordarshan who comes up with the clearance and puts the ball over the line for a throw-in to Orissa from the right flank. There she is, coming up with a throw-in there. Javamani Tudu. Orissa trying to work the way up in the middle of the half over there. That's Jasoda Munda with the ball, but losing out there is Jasoda to the wing back Pavitra. Pavitra, long lob on the far side to Nandini, the number 10, chasing that ball, but अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। परिमिता और काजल और दीप्ति, तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा गांव, विलेज, गांव भी नहीं, 1600 की लोक संख्या है पॉपुलेशन, एंड 6 प्लेयर्स आर कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम देयर। इट्स कॉल्ड द सिमडिगा डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो कुंटी डिस्ट्रिक्ट। ये दो झारखंड में हैं, सिमडिगा डिस्ट्रिक्ट और कुंटी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन महत्व की बात यह है कि एक 1600 की विलेज में से 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स या 6 प्लेयर्स इस साइड में आज खेल रहे हैं। मेरे को बताओ, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, वहाँ से शायद एक इतनी बड़ी लोक संख्या और 6 प्लेयर नहीं आते होंगे। मिलिंद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। वास्तव में सोचने की बात है। और जैसे कि खेलों की विकास की बात यदि हम मिलिंद करें, तो हॉकी में जो आज हम स्तर देख रहे हैं बढ़ता हुआ एक बार फिर से, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, और विशेषकर जबकि मुख्य अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं मिलिंद, यदि हम खेलों का स्तर बढ़ते हुए देखें तो सामूहिक प्रयास हैं। जब एक गांव से 6 बच्चे निकल सकते हैं राष्ट्रीय टीम के लिए,
तो हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही अच्छा है। तो इसके प्रयास के लिए सरकारें कोशिश कर रही हैं और व्यक्तिगत रूप से कुछ लीजेंड्स जो रिटायर हो चुके हैं। तो ये है भोलानाथ सिंह जिनके साथ इंट्रोडक्शन हो रही है। तो ये एक ऑफिशियल है जी अपने हॉकी फेडरेशन के। तो आप जो कह रहे थे, और ये फोटोग्राफ मेरे ख्याल से दोनों साइड के लिए कितना महत्व रखेगा। हम सारे फोटो निकालते हैं और ये जो फोटोग्राफ है भोलानाथ सिंह के साथ में, तो ये प्लेयर्स के लिए कितना अहम रखेगा। सवाल ये होता है कि जब ये मैच सेमीफाइनल ख़त्म हो जाएगी तो कौन जीतेगा, लेकिन द होल गेट इंडिया टुगेदर। बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। इस प्रतियोगिता में 192 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और उसमें से 192 खिलाड़ियों की बात करें, हम आपको रोचक जानकारी दे रहे हैं कि 20 खिलाड़ी उनमें से सिर्फ ऐसे हैं जो 20वीं सदी में जिन्होंने जन्म लिया है। उसमें 13 पुरुष खिलाड़ी हैं, 7 महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष वर्ग की जहां तक बात है, हम आपको बतला दें कि सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी जो हैं तेलंगाना के जे श्रीधर हैं 27 वर्षीय, जबकि सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं गुजरात के शौर्यजीत खैर हैं 10 वर्षीय। इसी तरह 20 खिलाड़ियों में जिसमें 7 महिला खिलाड़ी हैं, हम आपको बतला दें जिनका जन्म 2000 से पहले हुआ। 24 वर्षीय महाराष्ट्र की रूपाली सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और महिलाओं की जहां तक बात है तो 12 वर्षीय राजस्थान की पूजा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। इस प्रकार मलखम्ब के खेल में अभी देखिए यहाँ पर, जबकि ये वो एरिना है जहाँ पर मलखम्ब के मुकाबले होंगे और यहाँ पर अभी पूर्वाभ्यास किया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा, और 172 खिलाड़ियों ने 21वीं सदी में यानी सन 2000 के बाद जन्म लिया है। आप सोच सकते हैं कितने युवा खिलाड़ी इस खेल को अपना रहे हैं, इस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं मलखम्ब को, और इसके लिए इनके फेडरेशन भी बधाई की पात्र है। इसके अलावा भारत सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है, और जबकि खिलाड़ियों ने मलखम्ब को अपना मुख्य खेल बना लिया है, तो इसका भविष्य भी बहुत ही उज्जवल नजर आ रहा है। इस समय ये देखिए अभ्यास करते हुए, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का पाउडर लगाते हुए पोल मलखम्ब में, ताकि किसी भी खिलाड़ी को कोई चोट न लगे। और इस खेल में ये आवश्यक है कि खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह सतर्कता बरती जाए, उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। और इसके साथ ही जबकि अब यहाँ पर खेल आरंभ हुआ है, पुरुषों के वर्ग में
पोल मलखम्ब में अपना प्रदर्शन दिखलाते हुए। गुजरात के रुद्र राजपूत का प्रदर्शन, स्थानीय खिलाड़ी हैं और बढ़िया प्रदर्शन किया था शौर्य जीत के साथ। पोल मलखम्ब पर ये शुरुआत होती हुई टॉप पर गए हैं और यहां पर एक पद सिरासन की मुद्रा बनाई है उन्होंने और यहां पर प्रेस एलिमेंट, क्या वहां से समरसॉल्ट लगेगा? पद्मासन की मुद्रा बनाई उन्होंने, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये पेट का ताज हुआ, बहुत मुश्किल होता है। कुर्मासन और ये टर्न एंड ट्विस्ट, ये नटराज आसन की मुद्रा बनाई है उन्होंने। बहुत बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी का शानदार नमूना पेश कर रहे हैं रुद्र राजपूत। अब ये साइड लैंडिंग होगी, अच्छी लैंडिंग, थोड़ी सी वहां पर स्लिप हुए थे। और अगर हैंगिंग मलखम्ब की तरफ हमारे कैमरामैन दिखा सकें, यहां पर भी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। स्कोर की प्रतीक्षा करेंगे चंद्रशेखर, लेकिन उससे पहले यहां पर बारी है गुजरात की। ये गुजरात के खिलाड़ी इस समय रोप मलखम्ब पर। निद्रासन, एक बजरंगी बनाया है, पांव पर रोप थोड़ा सा फंसता हुआ, नटराज आसन की मुद्रा, ये पद्मासन, एक पद सिरासन। बहुत तेज गति से आसनों में बदलाव होता हुआ यहां पर, चूंकि समय कम है और उस कम समय में आपको बहुत सारे एलिमेंट विथ डिफिकल्टीज, विथ कॉम्बिनेशन परफॉर्म करने हैं। सुई धागा किया, पश्चिमोत्तानासन की मुद्रा में गए, वापस लौटते हुए 1 मिनट का समय ओवर हो चुका है। लैंडिंग पर भी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। नटराज आसन की मुद्रा, Not once but twice. Make sure they draw level. Will they do that? Midfield action there. Tamil Nadu clearly in control. And off she goes on a break. Durga pushing it wide on the left. Doordarshan goes for a long ranger. There's a deflection, which of course means they will have another set piece, another chance. We'll take a look at the chance yet again. There's an opportunity which seemed to be coming out of nowhere. And for yet again another instance, Odisha defense caught napping, as they say. And you can see the Tamil Nadu skipper, Soumya. She's way ahead of her line, waiting in anticipation. Which means that if Odisha are able to hold off the set piece and then charge back. For now, it's Malvika. Fires it in, low feed, comes off the bar. Yet again it's blocked. 3 times unlucky. Couldn't have been as close to scoring
Not once, not twice, thrice. Sandhya. What a chance and what pressure Tamil Nadu exerting as of now. There you go. That was a low feed. The goalkeeper completely missing. Deflection off the bar. Comes back. Second shot missed. Third shot blocked. Into the side netting. Sandhya. Coach would want her to do better. They would want to increase the goal margin. Odisha fighting on gamely. However hard they fight, remains to be seen. Very, very difficult for them to come back into the game without goals. Durga. Long feed, but this time straight into the hands of Spandita. The Odisha keeper takes a moment and then fires it away. Straight across the midfield. And yet again the ball is in control of Tamil Nadu. Odisha need to keep the ball. They need to press forward. They need to do it well. Joshua Damunda fires it on the right. And that's what we were speaking about. The attacks, Odisha attacks completely one-track attacks, as they say, one-dimensional. They're going down the right channel, wide right channel. No innovativeness as of now in the attacks. Tamil Nadu, on the other hand, extremely good at wing play, using both channels, both flanks very, very well. A lot of pressure down the middle. So all of you who've tuned in with us early this Sunday morning, take your pick. It's Tamil Nadu or Odisha. Remember, the supreme might of Manipur and Baladevi is waiting for the winner of this game in the final of the women's competition at the 36th National Games, which is being held here in Gujarat. Magnificent games which we've had so far, spread across 6 different cities, multiple venues, and of course football. The moment it started, and even as we come to the business end of the competition, both men and women, it's gone very exciting. There's a melee inside the box. They should have been cleared well. Even the goalkeeper Spandita failing to palm him for properly. Somehow managing to clear it away. It's left to Deepa to clear the lines. She does. Bunna on the ball. They need to be quick. Good footwork there. Back to Joshua Damunda. Fires it on the right, but there you go again. 2 strikers, but that's one Tamil Nadu player who's good enough to clear the lines. That was Pavitra. अजनबियों को पल में अपना बनाया अमूल the taste of India हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया अमूल the taste of India तूने ही मिलके करार जगाया अमूल the taste of India हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया अमूल the taste of India तुझसे ही मान हमारा तुझसे ही शान है तू ही तो है देश हमारा तुझसे ही स्वाद है अमूल the taste of India डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551 एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। There for them. Rani Rampal getting her 13th goal, her first, in fact her 13th field goal. All 13 field goals coming from Rani Rampal, the former India captain. And what a start this is. I'm a little dejected for Jharkhand. इतनी अच्छी खेली है उन्होंने करीबन 12 मिनट के गेम में और 3 डिफेंडर्स थे वहाँ पर और वो चूक गए। मुझे लगता है बेलेंद्र की ये हरियाणा का गोल झारखंड के खेल में और तेज़ी ला देगा, क्योंकि अब उनके सामने बढ़त का नहीं बराबरी का प्रश्न है। और रानी रामपाल ने जिस प्रकार इस टूर्नामेंट में अपना ये 13वां फील्ड गोल किया है, एक दर्शनीय फील्ड गोल, लेकिन मिलिंद वहाँ पर कमज़ोरी रही झारखंड के डिफेंस की, क्योंकि अभी तक तो वे बहुत होशियारी से रक्षा कर रही थी। और एक बार फिर से एक नया आक्रमण हरियाणा की ओर से
टीमें आ चुकी हैं टोमोहॉक के द्वारा एक और गोल करने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर्स ने झारखंड के गेंद को क्लियर किया था। 23 मीटर की लाइन से एक बार फिर आक्रमण, लेकिन झारखंड के पोजीशन में गेंद 23 मीटर की लाइन से समान अंतर पास देना चाहती थी, लेकिन बीच में ही टैकल किया हरियाणा के 7 नंबर की जर्सी में जो वहां पर खेल रही हैं शर्मिला देवी। तेज तर्रार खिलाड़ी हैं, लेकिन एक बार फिर से आक्रमण झारखंड का सीमा रेखा के समानांतर 23 मीटर की लाइन को क्रॉस किया। 2 प्लेयर वहां झारखंड के, हरियाणा के 3 खिलाड़ियों से घिरे हुए एक और प्रयास, लेकिन शूटिंग सर्किल के आने में फिलहाल शूटिंग सर्किल के अंदर आने में मिलिंद फिलहाल तो वे सफल नहीं हो सकी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो पहला गोल है हरियाणा का, ये एक ऊर्जा देगा और यहाँ एक प्रयास जो उनका था वो पेनल्टी कॉर्नर के रूप में बदला है। लेकिन जबकि हरियाणा 1-0 से आगे है, झारखंड को इस क्वार्टर में मिलने वाला ये पहला पेनल्टी कॉर्नर, और ये एक मौका है, ये अवसर है, यदि इसे भुना लिया जाता है झारखंड की ओर से तो खेल एक नए रूप में हमें आगे देखने को मिलेगा। शायद किस्मत ने कहा होगा कि आपने इतने अच्छे खेल खेले 12 मिनट में, तो ये ले लो पेनल्टी कॉर्नर मैं आपको देती हूँ। किस्मत ने कहा होगा, आर दे एबल टू कैपिटलाइज? नो and wasted there by Jharkhand. But what a pity, they played well for close to 12 minutes out here in the first quarter, but it took the brilliance of Rani Rampal with Neha up there to Navneet Kaur, and this is the one. Look at the 3 players in defense, and this was the penalty corner which was wasted by Jharkhand. Wonderful work there coming from the Haryana goalkeeper, the captain and India international Savita Punia. पुनिया एक नाम या सरनेम काफ़ी फेमस हो चुका है हर क्षेत्र में, हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग। तो हरियाणा से पुनिया नाम ने काफ़ी भारत को एक अलग अलग क्षेत्र में प्लेयर्स दिए हैं। झारखंड वंस अगेन दे विथ just under 2 minutes of play remaining out here. 2 Haryana players now blocking the 2 Jharkhand attackers, snatched away after there was a carried, and now moving forward, but an infringement there called by the umpire on the far side, KT Lalimpui. Perhaps the 2 sides might get a little relaxed here in 1 minute and 30 odd seconds remaining. Not Jharkhand. Jharkhand know that they would like to go into the half time, or rather the end of the first quarter. We are still used to that half time word. एक ज़माना होता था जब 35 मिनट का हाफ टाइम हुआ करता था, लेकिन अब we have now 4 quarters. So after the first quarter, this is quick move there by Neha on her own, not finding any player. Oh, that's wonderful. That's wonderful there. Taken by Navneet Kaur into the dangerous area all by herself. This is what I found lacking in Haryana today. The cohesion जो हम कहते हैं, मिलजुल के खेलना, that seems to be lacking. Even earlier on, Rani Rampal was all on her own. Mahima Chaudhary looking for a player, her partner onto the far side. Navneet Kaur, under a minute to go here in the first quarter. क्वार्टर के इस पहले क्वार्टर के अंतिम क्षणों में हरियाणा का एक और आक्रमण देखते हुए आप डीडी स्पोर्ट्स पर, कोशिश शूटिंग सर्किल में आकर एक बार फिर गेंद को गोल पोस्ट में डालने की। गेंद अभी भी हरियाणा के पास, उनका पहला प्रयास है कि वे एक और गोल कर लें, लेकिन वहां सफाई के साथ झारखंड के प्लेयर्स ने क्लियर किया था। 1-0 स्थिति ये है हरियाणा के पक्ष में अभी। दिनेश, बिफोर द गेम स्टार्टेड आई वाज टॉकिंग टू विकास and or I spoke to you also, and this is an attack there from Jharkhand very quickly. You know, I was saying Haryana might win 7-0 or 8-0, but the way Jharkhand has played in the first quarter, I don't feel that that's going to be the story of the day, unless of course Jharkhand after the second or the third quarter starts crumbling. So that's the end of the 50 सालों से जो बना हर मेज की शान, वो है अमूल चीज। हर दस्तरखान पे बनाया अपना अलग मकाम, वो है अमूल चीज। कहीं लूटी शाही वाहवाही तो कहीं बना दिल की जुबान, वो है अमूल चीज। भारत की लजीज विरासत का एक अजीज नाम, वो है
अमूल चीज, जिसे हर किसी ने प्यार से कहा ये मेरा चीज है। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। उसी की चल रही है और यहां पर फ्लिप किया। वीरभद्रासन के बाद वो स्विच था। अब एक बात तय हो गई है कि समरसॉल्ट नहीं करेंगे, समय कम है, साइड लैंडिंग पर जाएंगे। बोथ साइड एलिमेंट इस समय परफॉर्म करते हुए समरसॉल्ट के लिए ही जा रहे हैं। जी नहीं, अब होगा समरसॉल्ट। फ्रंट समरसॉल्ट की तैयारी है, बैक समरसॉल्ट किया है और इंच परफेक्ट लैंडिंग। कांटे की टक्कर है इस समय और अच्छी बात यह है चंद्रशेखर चौहान 8.90, मनु ध्रुव 8.65, राजवीर पवार मध्य प्रदेश 8.25, रुद्र राजपूत रोप पर 7.75, पार्श राणा पोल पर 7.60। अभी भरत ने अभी जो परफॉर्म किया है उनका अंक आना बाकी है। रोप की तरफ चले, रोप पर हैं तमिलनाडु के, और जब तक हम आपको दिखाते हैं अभी जो प्रदर्शन हुआ था पोल पर, ये उसकी झलकियां हैं। ये राजस्थान के खिलाड़ी भरत थे। तमिलनाडु के एम हेमचंद्रन के पास चलेंगे जो रोप पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हम ये रिप्ले देख रहे हैं और ये बैक समरसॉल्ट था। एम हेमचंद्रन तमिलनाडु के पद्मासन की मुद्रा बनाई है, उसके बाद पाद हस्तासन, ये क्रॉस, क्रॉस के बाद अर्ध चक्रासन और ये रिकेप पर आता हुआ बजरंगी पकड़, निद्रासन, एक और वादी, बजरंगी पकड़ और यहीं से क्या लैंडिंग करेंगे, नटराज आसन पर गए हैं। यहां से लैंडिंग होगी, जी हां, थोड़ा सा फिसले, लेकिन उनके कोच उत्साह बढ़ा रहे हैं, जोश बढ़ा रहे हैं। और जसवंत, ये जो मुकाबले चल रहे हैं, हरियाणा की टीम ने मलन दूसरा गोल कर दिया है। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। हमने ये उन्होंने जो वापसी की, डिस्माउंट अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन शुभंकर रोप मलखंब में 8.95 अंक लेकर टॉप पर हैं, जबकि
चंद्रशेखर मध्य प्रदेश के 8.90 अंक लेकर हैंगिंग में प्रथम स्थान पर है। मनु ध्रुव 8.6 पॉइंट अंक लेकर हैंगिंग मलखम में दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार ये ऑलराउंड रैंकिंग है। लगातार यहाँ पर ये मुकाबला चल रहा है। पिछले 2 दिनों जो मुकाबले हुए उसमें, और यहाँ पर बात करें शुभंकर विनय खावले की, वो टॉप पर बने हुए हैं। चंद्रशेखर चौहान पर नजर बनाए रखिए, लेकिन यहां महाराष्ट्र के शुभंकर ने उनको पीछे छोड़ दिया है और 8.95 पर पहुंच गए हैं। मनु ध्रुव अब भी बने हुए हैं तीसरे स्थान पर। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां आदित्य हैं। महाराष्ट्र के अक्षय प्रकाश, माफ करें, अक्षय प्रकाश यहां पर रिवर्स तरीके से स्टार्ट किया है। ये पोल मलखंभ है। सब मलखंभ में भी जो 3 मलखंभ होते हैं उसमें सबसे प्राचीनतम विधा। टॉप पर गए हैं, प्रेस एलिमेंट करेंगे और वहां पर आसन की मुद्रा बनाते हुए बहुत डिफिकल्ट होता है एक पैर पर बैलेंस बनाना। और बहुत बढ़िया वहां से टर्न एंड ट्विस्ट। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महाराष्ट्र के अक्षय प्रकाश इस समय दमदार परफॉर्मेंस देते हुए, सुई धागा किया है उन्होंने और बोथ साइड एलिमेंट करते हुए स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का कमाल का मिश्रण देखने को मिल रहा है। प्रेसिंग एलिमेंट और ये मयूरासन की मुद्रा है और एक हाथ से वहां पर ट्विस्ट किया। अब फरारा करेंगे। ये हनुमान ध्वज की पोजीशन थी, एक और फरारा आता हुआ। चेहरे के भाव पर नजर रखिएगा। समरसॉल्ट तो आएगा। अगर आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की तरफ से प्रदर्शन देख रहे हैं तो समरसॉल्ट बिल्कुल लैंडिंग पर आएगा। फ्रंट या बैक समरसॉल्ट, इंच परफेक्ट लैंडिंग होती हुई। और अपने प्रदर्शन से जब खिलाड़ी संतुष्ट हो तो समझ लेना चाहिए कि वो जो सोच कर आया था कम से कम 90%। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है। लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। आगे आगे बढ़ता है इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। This level of Haryana and Jharkhand को याद है फर्स्ट क्वार्टर में towards the end it was Jharkhand and the Haryana player, 2 of them ran or sprinted like they were running the 100 meters. यकीनन तौर पे क्या गजब के किसी एथलीट की तरह दर्शाया। आपकी बात से बिल्कुल सहमत मिलिन। लेकिन अब अटैक पे झारखंड की टीम। झारखंड ने जिस तरीके से सेमीफाइनल में जगह बनाई है, फिलहाल हल्का सा वहां पे खेल बाधित हुआ और फिलहाल यहां से लॉन्ग कॉर्नर लेने के लिए मुकाबले में 2-0 की बढ़त पे हरियाणा। सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला। Yes, while we did speak about the hockey 1998, that was the ice hockey that I did mention. Chance there, wasted. But the first women's Olympic field hockey competition was introduced by the IOC at the 1980 Summer Olympic Games. And we all know the importance of the 1980 Summer Olympic Games for Indian hockey, because that was the last time before we won a medal this time that the side won a medal at the 1980 Olympic Games in Moscow. So 1980 Olympic Games in Moscow, when India won a gold medal in men's hockey, and then it was also introduced for women in the Olympic Games.
यकीनन तौर पे 1980 में जिस तरीके से मॉस्को में विमेन गेम की हॉकी फील्ड हॉकी की शुरुआत हुई थी, और देखिए मुकाबले में सेमीफाइनल में दो बड़ी टीमें हरियाणा, बात करें 35वें नेशनल गेम की उप विजेता है, सिल्वर मेडलिस्ट केरल में जो पिछला आयोजित हुआ था, और 34वें नेशनल गेम झारखंड को ही हरा करके इन्होंने 2011 में नेशनल गेम का जो पिछले दोनों संस्करण हैं दोनों में फाइनल खेली है हरियाणा। तो इस टीम की दर्शाते हुए कंसिस्टेंसी को, और इस टीम में नजर डालिए रानी रामपाल, 250 मैचों का अनुभव, ओलंपिक खेल चुकी हैं सविता पूनिया, इस बार FIH बेस्ट गोलकीपर के अवार्ड 2023 से हाल ही में नवाजी गई, सिरसा के रहने वाली 240 मुकाबले मिले इनके नाम। और ये टीम वही दूसरी तरफ झारखंड को भी कम नहीं आंक सकते, सलीमा टेटे, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और निकी प्रधान जैसे सितारे, और ब्यूटी डुंगडुंग युवा टीम है ये भी झारखंड की। Oh yes, absolutely. I think the combination of 7 internationals for Haryana, 2 internationals for Jharkhand, 9 internationals playing out here, you can't have anything better on a wonderful Sunday morning. My submission to all of you watching this telecast on our national channel here, I'm sure is going to inspire the youth to enjoy this game of hockey. Back to Haryana. Oh, that was a wonderful pass there. Lurking very well on that occasion. And Navneet Kaur couldn't find anyone. 2020 Tokyo, Netherlands beat Argentina 3-1. But go back to 1980. Zimbabwe won the first gold medal at the 1980 Olympic Games for women when they beat Czechoslovakia. Netherlands have dominated as we now watch the ball going perhaps harmlessly onto the far side, and look at the Jharkhand player there, how swiftly coming to retrieve the ball. What because the Jharkhand team or players are trying to do is to make sure that they are on the ball. जितने बॉल के ऊपर आप रहेंगे, जितने बॉल के पास रहेंगे, जितनी बॉल की पोजीशन करेंगे, तो उतना उनको चांस बेहतर होगा to get a goal against Haryana. Get goal number 1 now, beat 2-1, the confidence will come up high. यकीनन तौर पे कॉन्फिडेंस से बढ़ा होगा, और बहुत बेसिक चीज़ है हॉकी में। फिलहाल इस समय 7 नंबर की जर्सी खिलाड़ी शर्मिला देवी बॉल लेकर के, क्या स्किल है इस समय, और मुकाबले में देखें 6 नंबर की जर्सी में वहां पे उदिता, जानी मानी बात करें उदिता, डिफेंस की एक अहम कड़ी है, ऑल हॉकी का जमाना है। उदिता दुआ हिसार की रहने वाली, 70 मुकाबले खेले, 4 गोल किए। एशियन गेम्स 2018 जकार्ता, कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम, और फिलहाल इस बीच तारीफ करनी होगी झारखंड, बढ़िया फ्लैंक का यूज करके मिडफील्ड में बॉल पोजीशन बेहतर, अच्छी प्रेसिंग, हाई पासेस और लॉन्ग बॉल को जिस तरीके से अभी तक ट्रैप किया। फिलहाल एक बार फिर से हरियाणा की टीम कितनी तेज गति से थ्रू पास आया, गोलकीपर की तारीफ करनी होगी इस बार सोनल मिंज की, इस खतरे को टाला। और क्या बेहतरीन सेमीफाइनल का मुकाबला हरियाणा वर्सेस झारखंड, ये मुकाबला बहुत अहम रहेगा, और बहुत सारे अहम जानकारियां हमारे साथी कमेंटेटर मिलिंद वागले आप तक पहुंचाए। हॉकी का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, और खास करके विमेंस हॉकी 1980 मास्को ओलंपिक में पहली बार, फील्ड हॉकी की बात कर रहे हैं हम। लेकिन वापस इस समय बॉल पोजीशन 23 मीटर की रेखा से हरियाणा की टीम इस समय अटैक बनाती हुई। झारखंड की टीम बात करें 34वें नेशनल गेम्स जो हुए थे, रांची ने आयोजित किया था झारखंड में, वहां ये टीम सिल्वर मेडलिस्ट है मिलन, और ये टीम कहीं ना कहीं पिछले 4-5 सालों में आपने बहुत अहम बात की, सिमडेगा, खोटी जैसे छोटे गांवों से 5 से 6 इंटरनेशनल प्लेयर निकलना। मिलिंद, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हॉकी में छोटे छोटे राज्यों का और कुछ ऐसे अहम सुदूर इलाकों का जो कंट्रीब्यूशन इस समय वर्तमान हॉकी में, वो प्रशंसनीय है। This is my India. India is not Mumbai, India is not Hyderabad, Bangalore, Delhi, Kolkata. India is these places that you mentioned. To the other side now, Haryana mounting the attack all by themselves. Today we look at different Haryana side. They don't look as if they are playing together as a team. वो नज़र नहीं आ रहा है जो हरियाणा is known to play. It's a different matter that they've got 2 goals out there, Vikas. But अगर आप देखेंगे, they are all alone. This is the very famous Sonika there. She's not an international, but nevertheless coming up now. Oh, look at this girl, number 9.
the dangerous girl as far as Jharkhand are concerned. They'd like to keep her as far away as possible from the ball. Rani Rampal, जितने दूर उसको रखेंगे आप बॉल से उतना झारखंड का फायदा होगा. But your question there, it's these small places which are producing hockey players, are producing sportsmen, not only hockey, and that augurs well for the sports in India. And that's, I think, the mission of led by the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, when he has made sure that every particular sport, it is not cricket, it is not athletics, it's not swimming, it's not football, but it's now Malkham, Yogasana, archery, lawn ball, every sport gets important. Jharkhand are up now in this particular one, close to the... This is exactly what I've been liking about Jharkhand. They have got the ball possession. They're making sure that someone like Gagandeep Kaur will not get it, but they'll take it away from her. यकीनन तौर पे इस समय अन्य खेलों पे भी भारत का देखिए लॉन बॉल में इस बार कॉमनवेल्थ में भारत गोल्ड मेडल लेकर आए. योगासना भारत का जो परंपरागत खेल है योगा, उसको जिस तरीके से प्रमोट किया प्रधानमंत्री और खेलों के लिए जो बेहतरीन कोशिश की जा रही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, गुजरात राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग. फिलहाल इस समय एक समानांतर पास 15 नंबर के जर्सी में सोनिका ने पास किया 11 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी इस समय गगनदीप कौर. लेकिन झारखंड की तारीफ, डिफेंस ऑर्गेनाइज होता है बेहतर तरीके से, प्रेसिंग शानदार इस समय कॉम्बिनेशन. मिडफील्ड हॉकी में देखें, मिडफील्ड का बैटल बहुत अहम मॉडर्न हॉकी में. आपके जो मिडफील्डर्स हैं जितना बॉल सप्लाई करेंगे बेहतर फॉरवर्ड को, और फॉरवर्ड लाइन में देखें मिलिंद, शर्मिला देवी, रानी रामपाल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं फॉरवर्ड लाइन में. और इतनी बॉल बेहतर जब सप्लाई होती है, यही वजह है 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, 1 फील्ड गोल आया. और इसे बीच 9 नंबर में रानी रामपाल, ये खिलाड़ी को बॉल से दूर रखना होगा. बहुत अहम बात कही थी आपने, वो कार्य कर रहे झारखंड वापस से अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को बेहतर करके अटैक पे. लेकिन इस बार बॉल हेवी टच था, इस कारण कंट्रोल नहीं कर पाई. शानदार ड्रिबलिंग मिलिंद. Yes, absolutely. I think the combination of the 4 or 5 Haryana and Jharkhand players that we've watched in the last 30 odd seconds, who can believe that this is the class of hockey that we are now watching. Hockey for women particularly has improved so much over the last few years, and that's the reason as to why we have seen the results at the international level. Indian women have come of age, I would really say, and with competitions of these nature, the 2 Haryana players there, Rani Rampal and Navneet Kaur, the 2 major goal scorers. Rani Rampal वो खड़ी है वहाँ पर जैसे कोई एक शेर खड़ा है अपना प्राय मिलने के लिए, एंड जब उसको बॉल मिल जाता है, देखिए सेम थिंग, शी इज जस्ट वेटिंग फॉर द बॉल टू बी रिसीव्ड देयर, एंड द मोमेंट शी रिसीव्स द बॉल शी इज इनटू हर ओन वे टू गेट क्लोजर देयर. इससे पीछे समय बेहतर अटैक शॉटिंग सर्कल में गोलकीपर को बीट किया. रानी रामपाल ठीक तरीके से इस बॉल के रीच में नहीं थी, वरना बेहतर तरीके से तेज तर्रार फॉरवर्ड हैं. 250 मुकाबले खेले और दूसरे क्वार्टर की यहीं पे समाप्ति हुई, यानी पहला. डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551. एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है. आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551. एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ. अजनबियों को पल में अपना बनाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. तूने ही मिलके करार
Amul, the taste of India. हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया अमूल the taste of India. तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है अमूल the taste of India. डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551. एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। कि पद्मासन हुआ है, फिर वो उसने ऊपर करते हैं, फिर पद्मासन सर, और सब आसन पहले नीचे सिखाते हैं, फिर बाद में वो ऊपर करते हैं। उसमें जो सुनंदा आंधळे पहली स्कूल कंपटीशन खेली हो सातारा में, उसको कुछ भी उन्होंने बताया नहीं था कि नहीं ब्लाइंड लड़की नहीं खेल सकती, मगर हमने लिख के दिया था कुछ भी होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल हम लोग रहेंगे। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड स्कूल है नासिक में, बहुत बड़ी स्कूल है, उधर नहीं का 16 लड़कियाँ वो मल्लखम्ब कर रही है और अच्छा मल्लखम्ब करती हो। जैसे नहीं का बोलते हैं ना ब्लाइंड लोगों के लिए कि चांद सूरज को हो खुद मोहताज, चांद सूरज को हो खुद मोहताज, भीख न मांगो उन उजालों की, बंद आंखों से ऐसा काम करो आँख खुल जाए आंखों वालों की, ऐसे काम करे। यानी मेरे को ये बोलना है इंडिया के लोगों को कि आँख नहीं रही तो भी वो मल्लखम्ब कर सकती है। तो आप इंडिया वालों ने नहीं कहा आँख नहीं है पैर नहीं है, सब लोग कर सकते हैं मल्लखम्ब। मल्लखम्ब इतना बड़ा है, शरीराच्या प्रत्येक भागाला व्यायाम देणारा प्रकार यानी मल्लखम्ब रहता है। आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आप लोगों का नहीं का जो बोलते हैं ना मैं मोबाइल में ये कर रहा हूँ, मैं मोबाइल में वो कर रहा हूँ, नहीं करने का। आप एक घंटा दो हम लोगों के लिए, स्टडी तो सबको करना है मगर मल्लखम्ब करेंगे तो आप लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा। आप लोग कंपटीशन मत खेलो मगर मल्लखम्ब करने से फिट होगा। फिट इंडिया, फिट इंडिया। मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा पारंपरिक गेम, एक मट्टी वाला गेम, एक आपने स्टेज पे ला के हमको बहुत धन्यवाद सर जी। आप लोगों ने गुजरात गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूना में के लोगों हम लोगों को बहुत सपोर्ट करे, महाराष्ट्र ओलंपिक वाले हम लोगों को बहुत सपोर्ट करे। हमने पहली बार कोट पहना सर, हमको अच्छा लगा। अभी भी मेरे को रोना जैसा हो रहा है कि हमने कोट पहना सर। हम लोग लंगोट जांग वाले हम लोगों को कोट दिया, ट्रैक सूट दिया, स्टार बनाए। हम लोग नीचे आए तो सब लोग हमारे फोटो निकाल रहे हैं, सब लोग इंडिया से हम लोग पूछ रहे हैं यार क्या रे तू किधर दिख रहा है, टीवी पे दिख रहा है। मैं पहली बार आया सर, मेरे को अभी भी डर लग रहा है बात करते करते मेरे को सर, सॉरी, अच्छा लग रहा है मेरे को। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि हम लोगों को हमने स्टार बना दिया। हम लोग अभी प्लेन से आए सर, पहली बार प्लेन में बैठे तो अच्छा लगा सर। हम लोगों को उड्डान करते करते डर रहे थे सर, हम लोगों को बेल्ट लगाने बोला, 4-4 बार बेल्ट लगाने को बोला सर। जी बिल्कुल, और सपने जब सच होते हैं तो ज़रूर भावनाएं भी उमड़ आती हैं। जानवी, जैसा कि आपके गुरु कह रहे हैं कि मोबाइल पर समय बिताने से बढ़िया है कि आप मल्लखम्ब एरिना में प्रैक्टिस करिए, आपका कब ख्याल आया मल्लखम्ब करने का और कितना समय देती हैं पढ़ाई के साथ? मैं 3rd स्टैंडर्ड से मल्लखम्ब कर रही हूँ, अभी मुझे 12 इयर्स हुआ मल्लखम्ब करते हुए। और स्टडीज़ तो लाइक जितना मल्लखम्ब कर रही हूँ उतना मेंटल हेल्थ तो फिट होता ही जाता है, तो स्टडीज़ इतना नहीं होता है मेरे से जितना मैं प्रैक्टिस में इन्वॉल्वमेंट हूँ। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस होता है, बट स्टडीज़ सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे ही होता है। सो बस इतना ही। रूपाली, आप इंडिविजुअल रैंकिंग में टॉप पर आई हैं और उम्मीद ज़रूर होगी कि जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगी उसमें आप गोल्ड मेडल जीत सकें। किस तैयारी के साथ यहाँ पर आई हैं आप? हाँ, मैं 4 साल थी तभी मैंने 20 साल हो गया मैं मल्लखम्ब कर दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं गोल्ड मेडल लेके आए और बहुत बहुत ये महाराष्ट्र की टीम को बहुत ये है। जी हाँ, अभ्यास इतना करती हैं कि बोल नहीं पा रही हैं। नंदिनी, चलते चलते बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्मीदें हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में आपको? जैसे कल के परफॉर्मेंस में हम लोग ने गोल्ड लाया है मेहनत करके, तो इस बार भी हम लोग गोल्ड की बाजी मारेंगे। और मैं गुजरात गवर्नमेंट के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सब मल्लखम्ब को सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी मैं आदरणीय नमस्कार कर रही हूँ। आपने मल्लखम्ब को प्लेटफॉर्म दिया है और बच्चों को बहुत मतलब विश्व पे लेके जा रहे हैं आप। धन्यवाद। तो ये थी महाराष्ट्र की टीम। 50 सालों से जो बना हर मेज की शान, वो है अमूल चीज। हर दस्तरखान पे बनाया अपना अलग मकाम, वो है अमूल चीज। कहीं लूटी शाही वाहवाही तो कहीं बना दिल की जुबान, वो है
अमूल चीज, भारत की लजीज विरासत का एक अजीज नाम, वो है अमूल चीज, जिसे हर किसी ने प्यार से कहा, ये मेरा चीज है। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। From Sandhya Ranganathan straight into the wall, trying to create chances galore, but Odisha defense is somehow managing to hold fort. Off she bursts away, Pavitra. And the ball goes out of the touchline for a throw-in, quick throw-in there for Odisha. A lovely turn there in Jhasa. But of course being penalised there by the referee Kanika Burman. Good start, but we are on the hour mark, so just about 30 minutes left. Which way does this game go? I'm going to ask my colleague Ashish in just a bit about what he thinks, which way this game is going. This, in the meanwhile, as Tamil Nadu is prepared to take this free kick. Malvika suddenly will be an aerial delivery into the center of the box. 3 attackers there. Off she does. Onto the second post. Headed down there. The second ball with Tamil Nadu. Doordarshan. There's a melee there. Crossfield to the left. Quick turn. Good block. Odisha defense seems to be a little bit more proactive, more specifically after they got their first goal in the dying minutes of the first half. And Tamil Nadu will be trying to make sure they increase the lead and solidify their case. But as you can see, the game right now being played entirely in the Odisha half. So it remains if Odisha can make a good counter-attack, that can catch the Tamil Nadu team napping. Literally everybody out there. But a bout of miss-passing there. Players not being able to control, and there you see yet another opportunity. Goes a begging. Spandita. High kick. Tamil Nadu know they need to control this game. Bunny at the far line, far touch line. Off to Monica Mins. Monica dispossessed quickly. Tries to get back, and yes, she does. Good effort there. They're still concentrating on one side of the flank. This time it's the left. Quick turn. Slowly and steadily trying to gather pace, but yet again the referee calls for an intervention. Ashish, which way is this game headed? देखिए, अगर तमिलनाडु की टीम यहाँ पर एक गोल और कर लेती है तो फिर उड़ीसा के लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी। फिलहाल परिवर्तन होता हुआ बीच मैदान पर 12 नंबर की जर्सी में आर युवरानी के स्थान पर महालक्ष्मी बीच मैदान पर प्रवेश करती हुई। तो फिर से वापस आता हूँ मैं अपनी बात पर कि यहाँ यदि तमिलनाडु की टीम अपनी बढ़त को एक गोल से भी अगर और मजबूत कर लेती है तो उड़ीसा के लिए फिर बहुत मुश्किलें होंगी वापसी आने की। लेकिन अगर उड़ीसा का टीम यहाँ पर बराबरी का गोल दाग लेती है तो फिर ये मुकाबला हो सकता है
कि अतिरिक्त समय में भी हमें जाता हुआ नजर आए, क्योंकि उसके बाद फिर कोई भी टीम दूसरी टीम को बहुत ज़्यादा मौका नहीं देगी अपने गोल मुख पर आक्रमण करने का। फिलहाल उड़ीसा की टीम के हाफ में इस समय गेंद मध्य रेखा के नज़दीक एक लंबा शॉट लगाकर प्रियदर्शनी ने गेंद को पहुंचाना चाहा था अपने साथी खिलाड़ी पी संध्या के लिए। दाईं तरफ से पी संध्या के पास एक बार फिर से गेंद डाउन द लाइन, बिल्कुल समानांतर दौड़ रही हैं टच रेखा के, लेकिन गेंद प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के पांव से लगने के साथ ही वहां पर गोल रेखा को पार कर गई और ये फ्लैग किक का अवसर इस समय तमिलनाडु की टीम के लिए है। देखना है कि क्या तमिलनाडु की टीम इस फ्लैग किक का कोई लाभ उठा पाती है। इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में फिलहाल 2-1 से बढ़त उन्हें हासिल है उड़ीसा की टीम के खिलाफ और एम मालविका इस समय ये सेट पीस लेने के लिए तैयार है। दूर वाले छोर पर गेंद को उन्होंने एक बार फिर से जमाया अपने हिसाब से। साथी खिलाड़ी उनके 4 पेनल्टी बॉक्स के अंदर और एक खिलाड़ी के रूप में एन नंदनी के रूप में बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स के ऊपर चिप, और वहां पर अवसर हो सकता था जबकि गोल रक्षिका सपंदिता दास से चूक हुई थी। गेंद उनके उठे हुए हाथों के बीच से निकल गई और वहां पर कोशिश निश्चित रूप से होनी चाहिए थी तमिलनाडु के खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन वो हो नहीं पाई। और इस बीच प्रत्याक्रमण इस समय प्यारे झांसा जो कि अपनी टीम के लिए गोल कर चुकी हैं, एक प्यारा सा गोल उन्होंने किया था, लेकिन इस अवसर पर जैसे ही बैक पास दिया एक लंबा लॉन्ग रेंजर सीधा नियर पोस्ट के नजदीक से होता हुआ गोल रेखा को पार कर गया। कोई डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अजनबियों को पल में अपना बनाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। And more, and this perhaps is one more opportunity which has come their way. यकीनन तौर पे एक और मौका, और जी हाँ, चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला है हरियाणा को। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पे टीम रणनीति बनाती है। हरियाणा की टीम जानी जाती है अपने तेज तर्रार हॉकी के लिए, पिछले दोनों नेशनल गेम में फाइनल खेली है। 34वें और 35वें फिलहाल नजर डालते हैं इस समय इस पेनल्टी कॉर्नर पे इंजेक्ट करने के लिए। तीनों ही गोल अभी तक रानू रामपाल, एक पेनल्टी कॉर्नर से, एक फील्ड और एक पेनल्टी स्ट्रोक से फिलहाल पुश किया, ट्रैक किए खूबसूरती से, लेकिन इस बार अभी भी खतरा टला नहीं है। अंपायर वहां पे जरूर संकेत देती हुई, जिस तरीके से केटी लाल हिमपुली मिजोरम से हैं और वापस इस समय अटैक पे ये ताकत मिलिंद इस टीम की, पलक झपकते इस समय अटैक बनाती है टीम। How quickly they moved from one half with Haryana taking that penalty corner, but not capitalizing on what came their way, and then suddenly Jharkhand shifted the momentum to go into the attack to the far side. Haryana now. This is exactly what we've been watching about. She made sure that she was on her own. Sharmila Devi through pass squared on with Navneet Kaur. The brilliance of Navneet Kaur and Rani Rampal has been such a revelation to watch out here. But Sharmila Devi not in position
to get it on to the left flank near the goal post and missed. That could have been a slight opportunity their way. Jharkhand will have to up their game from here on. We saw that attack just immediately after the penalty corner, because that's the type of game Jharkhand will have to continue to play. Attack, attack. The only way they can now score goal number 1 is through an attack. Rani Rampal, once again, you can't miss that 9 number, can you? यकीनन तौर पे 9 नंबर की जर्सी के इस खिलाड़ी को मनोमस्तिष्क में याद कर लीजिए, क्योंकि वो महिला हॉकी की भारतीय टीम की ये वो सितारा है पिछले 9-10 सालों में। लेकिन देखिए क्या शानदार अटैक, ये ताकत है झारखंड का। इस समय पुश किया बॉल को वापस से शूटिंग सर्कल में, गोलकीपर सबिता पूनिया, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर मिला झारखंड को। सबिता पूनिया के बारे में बता दें, इन्होंने अभी हाल ही में 2023 का बेस्ट गोलकीपर FIH अवार्ड दूसरी बार ये जीता है मिलन, और ऐसा करने वाली दुनिया की सिर्फ हॉकी में दूसरी प्लेयर हैं। और फिलहाल नजर डालेंगे इस पेनल्टी कॉर्नर पे। झारखंड को टीम यहां से चाहेगी अटैक की। आपने बेहद अहम बात कही, कहते हैं सुरक्षा की भी गारंटी आक्रामकता ही है, और इस समय इस पेनल्टी को लेने के लिए 7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी दीपिका सोरेन इस समय देखना होगा। सबिता पूनिया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन हॉकी, सबिता पूनिया देखना होगा किस तरीके से दीपिका सोरेन जो कि सिमडेगा की रहने वाली, और देखना होगा इसी बीच खूबसूरती से कोशिश थी, लेकिन शायद ये खतरा यहां से टल, या एक बार फिर से मिलन शायद वापस से पेनल्टी कॉर्नर ले जाएगी। Oh yes, that wonderful village in Simdega district, Karnaguri, from where they have 6 players. Second time that Jharkhand have an opportunity. The Great Wall of the Himalayas, that the goalkeeper is no, yeah, oh yes, nearly there is what Haryana felt was against them, and Jharkhand here in the 10th minute of play. Well, what a chance this was for them, look at this, stopped well, slammed, stopped second time. Was it allowed? यकीनन तौर पे रिबाउंड पे बॉल वापस आई थी। सबिता पूनिया ने अपनी दाहिनी तरफ पूरी तरीके से रीच का इस्तेमाल करके और गोल के खतरे को टाल दिया यहां से, लेकिन बेहद गोल पोस्ट के नजदीक ऐसा लग रहा था मिलन की संभवतः पहला गोल झारखंड के लिए आ चुका है, लेकिन शायद यहां पे थोड़े अनलकी रहे। एवरीथिंग वाज राइट, द गोल डिडंट कम। बिल्कुल सारी चीजें बेहतर हुई, लेकिन गोल की जो तलाश थी वो नहीं हो पाई। क्या बेहतरीन मुकाबला, आज का पहला सेमीफाइनल महिला वर्ग का। दोनों टीमें हरियाणा 9 से 10 अंतर्राष्ट्रीय सितारे, और दूसरी तरफ झारखंड बहुत बढ़िया हॉकी खेल रही झारखंड की टीम भी। भले ही 3-0 टेलीविजन स्क्रीन पे आपको देख रहा हो स्कोर, लेकिन ये न्याय नहीं करता हुआ जितना बढ़िया खेला है हॉकी झारखंड ने। पहले क्वार्टर में मिलन क्या बेहतर बॉल पोजीशन, अच्छे ड्रिबलिंग, बेहतर कंट्रोल और अच्छे पासेस, और जिस तरीके से मूव बनाए थे लग रहा था कि आज हरियाणा को बहुत चुनौती मिलने वाली है। लेकिन थोड़ा सा आत्मविश्वास, टॉमोहॉक लगाने की कोशिश, इसे बीच आक्रमण। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में जरूर पिछले क्वार्टर्स की जो पहले मोमेंटम लेकर आई थी फर्स्ट क्वार्टर में, वैसी आक्रामक हॉकी की दरकार होगी मिलन झारखंड के लिहाज से। Good point, very good point there, that Jharkhand played a type of hockey which was so gladdening to the heart in the first quarter. They're continuing with that now. Deepika Soreng back. They'll have to make sure that they fall in front as much as possible. But yes, after that scintillating display where they dominated the first quarter, I would really say, although they did concede a goal which came in the 13th minute of play of the first quarter, they dominated play, but from there on it was Haryana who picked up everything. We've seen patches of brilliance coming from Jharkhand, but they need to have a consistency in play on the aggression. With Udita, the defender, at the far back. Coming up now, weaving her way through is Jyoti for Haryana. Square pass is this, but missed on that particular occasion. Jyoti once again up to Jharkhand.
get onto the far side. A good cohesive unit. Snatched away, virtually snatched away. But taken away once again by Jharkhand. Through pass, straight. The angle was not there. Through the defense of Haryana. Suddenly Haryana going down. Jharkhand attacking in that danger area. Haryana picking it up there. Trying to stop it is Shilpi Dabas. Waiting to take it away on this occasion is Nishi Varshi. But look at Jharkhand there, on the prowl, on the prowl. यकीनन तौर पे पिछले 3-4 मिनट के अंदर झारखंड ने जो खेल दिखाया है, इसी निरंतरता को बरकरार रखनी होगी। फिलहाल इसी बीच बैक पास करके गेम की गति को थोड़ा स्लो करना चाहेगी। यहाँ पे हरियाणा स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, वापस से बॉल पोजीशन, लेकिन झारखंड की निरंतर आक्रामक करनी होगी, क्योंकि एक बड़ी टीम है हरियाणा। हरियाणा की टीम में निशा वारशी की आपने जिक्र की, 49 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम की हिस्सा थी। इसके अलावा नवनीत कौर 119 मुकाबले खेल चुकी हैं, नेहा गोयल 115 मुकाबले इंटरनेशनल स्तर पे। ये तमाम खिलाड़ी दर्शाती हुई हरियाणा की टीम की, चाहे रानी रामपाल हो, सविता पूनिया, लेकिन तारीफ झारखंड की भी होनी चाहिए। फिलहाल इसी बीच 17 नंबर की जर्सी में ज्योति इस समय बॉल पे, युवा खिलाड़ी, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस दिखाया झारखंड ने, आसानी से बॉल क्लियर की। और राइट फ्लैंक से देखिए क्या बढ़िया आक्रमण बनाते हुए गति, बेहतर बॉल के पे कंट्रोल, क्या शानदार स्किल, शूटिंग सर्कल के नजदीक, क्या लाजवाब हॉकी खेल रही है टीम। और झारखंड के लिए बहुत अच्छे संकेत मिलन, टीम के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। Yes, the class of hockey that we are watching over the last 2 quarters, and with about 4 minutes remaining here in the third quarter, has been very, very high. The intensity on both the teams has been exemplary. Haryana, as Vikas rightly mentioned, will try to slow the pace of the game, but that sometimes can be very dangerous, because when you slow the pace of the game, your opponents can always... This is exactly what Jharkhand has taken advantage of. When Haryana has slowed the pace of the game, they have made sure that they are on the other side, and the longer you're on the other side, as what's happening, this is good, take it, but no. क्या लाजवाब इस समय कोशिश थी इस बार लेफ्ट फ्लैंक से। बहुत अहम बात कही मिलिंद आपने, कई बार इस समय गेम की पेस को आप स्लो करते हैं, प्रतिद्वंदी टीम उसका एडवांटेज उठा करके कई बार प्रति आक्रमण, लेकिन हरियाणा की टीम के डिफेंस में उदिता दुआ, ये वो नाम है हिसार की रहने वाली, 70 इंटरनेशनल मुकाबले, 4 गोल, एशियन गेम्स 2018। फिलहाल नजर डालते हैं इस आक्रमण पे। सविता पूनिया, याद कीजिए 2020 टोक्यो ओलंपिक जो 21 में आयोजित हुआ था, भारतीय टीम को पहुंचाने में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो इनका प्रदर्शन था, बहुत लाजवाब, और भारतीय टीम 4th प्लेस अर्जित की थी। झारखंड का आक्रमण इस समय राइट फ्लैंक से, इनके विंगर, इनके मिडफील्डर्स बहुत अहम कार्य कर रहे हैं। तीसरा क्वार्टर, बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल का। बॉल लेकर हरियाणा के लिए 11 नंबर में गगनदीप कौर बॉल बनाती हुई, एक समय समानांतर पास आया, बहुत बढ़िया गोल कीपिंग, सोनल मिंज की खतरा टला भी इस समय झारखंड के। Yes, with under 3 minutes of play remaining here in the third quarter, both Haryana and Jharkhand in particular know very clearly that it's 15 minutes plus 2 minutes, 17 odd minutes of play in the semi-final. All of the good work that they have done in the earlier rounds is going to come to nil if they lose this particular match. Haryana up by 3-0. A reminder that this is the first of the semi-finals which is being played at the Major Dhyan Chand Hockey Stadium in Rajkot, the 36th National Games. And after this, the second semi-final in the afternoon session at 3:30 will feature Madhya Pradesh versus Punjab. That should be also a cracker of a match. But for the moment, with under 2 minutes of play remaining, 120 seconds of play, because Jharkhand now has that last chance. Pick up goal number 1, pick up goal number 2, but still 3 goals looks in the far distance. यकीनन तौर पे इस समय 1 या 2 गोल करके तीसरे क्वार्टर की समाप्ति करना चाहेगी टीम,
क्योंकि जब भी आप क्वार्टर समाप्त करके जो ब्रेक होता है 2 मिनट का, एक अलग ऊर्जा से, एक अलग स्ट्रैटेजी से, लेकिन देखिए क्या बेहतर स्किल 17 नंबर की जर्सी में ब्यूटी डुंग डुंग, ये भी बेहतरीन खिलाड़ी है ब्यूटी डुंग डुंग, और क्या शानदार आक्रमण था। ब्यूटी डुंग डुंग जूनियर महिला हॉकी प्लेयर विश्व कप की सिमडेगा की रहने वाले मिलिंद। We call it brick walling in the sales parlance, and brick walling is so important for Jharkhand at this stage. Twice in the last 3 odd minutes that they have come towards the Haryana goal post with a very big giant, as one would really call, not giant physically, but giant as in the goal there. Well, that's a good attempt, very good attempt, take this! But how quickly in position is Savita there? The important thing for a goalkeeper is to get into position. You know, you got that goal post, but if you're not in the right position, then that goal can just about sneak through, as has happened in the case of Sonal Minj for Jharkhand in the goal, when Rani Rampal has found those gaps at regular intervals to get the ball through. On the other hand, Savita Punya has been at the right place on the goal post to make sure that thrice the ball did not go inside the goal post. यकीनन तौर पे गोलकीपर के लिए पोजीशन उनकी किस तरीके से किस स्थान पे रहना है, ये बहुत अहम बात कही मिलिंद ने। फिलहाल इसे बेचे समय शूटिंग सर्कल के अंदर रिवर्स स्ट्रीक से, लेकिन एंगल ब्लॉक किया था हरियाणा के। बात करें इस समय, देखिए पेनल्टी कॉर्नर मिला झारखंड को। देखिए मिलिंद, जैसे ही आक्रामकता भरी हॉकी खेलती हुई टीम अटैक बनाते हैं मिडफील्ड से, अच्छा बॉल सप्लाई करते फॉरवर्ड के लिए, जैसे ही डिफेंस पे ओवरलोड होगा गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। 18 seconds of play remaining. This is the last chance here in the third quarter. Of course, the fourth quarter remains there. And will Jharkhand be able to take those 18 seconds and convert it into the first goal? This is a good combination. Haryana with 4 in along with the goalkeeper Savita Punya. Stopped well. Oh, she does not take a direct, and once again a very strong Savita Punya in the right position to thwart what would have been, yes, the third quarter out there. Stopped well, not a direct one, squares it on, and Vikas, फिलहाल इस समय बेहतरीन ये वेरिएशन कहते हैं, और संभवतः पहला गोल इस समय मिल गया है। जी हाँ मिलिंद, आखिरी इस समय कुछ सेकंड्स में तीसरे क्वार्टर के झारखंड ने वापसी के बिगुल बजा दिए हैं। क्या लाजवाब गोल किया झारखंड के लिए। ये वो टीम है जो हार नहीं मान सकती, ये वो टीम है लड़ना जानती है। और फिलहाल तीसरे क्वार्टर की समाप्ति की तरफ खेल, और क्या शानदार समाप्ति की तीसरे क्वार्टर के मिलिंद। ये गोल इन्हें संजीवनी का कार्य देगा जब आखिरी क्वार्टर अजनबियों को पल में अपना बनाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान
अंडरस्टैंडिंग खिलाड़ियों के बीच में थोड़ा सा लॉफ करता हुआ वहाँ पर चिप करता हुआ ये शॉट, लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाए और गेंद वहाँ पर जो टच लाइन है उससे बाहर की तरफ। थ्रो इन इस समय पक्ष में तमिलनाडु के। तो निश्चित रूप से तमिलनाडु को खिलाड़ियों को अपनी तरफ से अब नए सिरे से एक रणनीति के तहत यहाँ पर आक्रमण करने होंगे, हर वो मौके को भुनाने होंगे जो उनके पास आ रहे हैं इस समय। प्रियदर्शनी जिन्होंने कि पहला गोल किया था, यहाँ पर पोजीशन लेने की कोशिश उन्होंने गंवाई और अच्छा खेल जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है ओडिशा के तरफ से। लगातार वहाँ पर फ्री किक जो दी गई है इस समय तमिलनाडु को, देखना कि यहाँ पर किस तरह से वो किक लेती है, लेकिन मानना पड़ेगा एक अच्छा दबाव यहाँ पर ओडिशा के खिलाड़ियों ने सेकेंड हाफ में डाला है और मध्याह्न के बाद उनका खेल थोड़ा सा गर्मजोशी के साथ यहाँ पर नजर आया। इस बार गेंद को पोजीशन लेने की कोशिश में वहाँ पर पेनल्टी बॉक्स के बिल्कुल सामने सफल नहीं हुई, ड्रिबल किया महालक्ष्मी ने, आगे की तरफ हल्का सा पास दिया, उसके बाद में पोजीशन तिरछे पास के रूप में संध्या रंगनाथन के पास दिया, लेकिन गोल लाइन के बाहर इस बार गेंद चली गई। तो फ्री किक निश्चित रूप से यहाँ पर सौम्या नारायण स्वामी को लेना होगा जो कि गोलकीपर हैं, कप्तान हैं उड़ीसा के जो खिलाड़ी हैं। उस समय प्रयत्न करेंगे अपने तरफ से स्पंदिता दास। तो बचाव निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों टीमों का 2-2 गोल होने के बाद यहाँ पर बराबरी में चलता हुआ इंतज़ार हो रहा है कि खिलाड़ी वहाँ पर जो गिरी हुई हैं अभी भी कि उन्हें किसी तरह से मेडिकल सहायता दी जाए। खिंचाव मांसपेशियों में आया है, रेफरी ने बाहर की तरफ इशारा किया। तो शायद मैं समझता हूँ कि अब बहुत तेज़ी के साथ ये खेल यहाँ पर खेला जाने वाला लाया जा रहा है, लेकिन धूप काफ़ी निखर चुकी है। आज जब खेल की शुरुआत हुई तो 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान था जो बढ़कर अब 30 के ऊपर चला गया होगा। श्री अजनबियों को पल में अपना बनाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। Orissa on the attack. One more attack building up over here, but cut away nicely by Pavitra, initiating a move on the left. Mahalakshmi with the ball there. There you see it at the top of the penalty box, and Mahalakshmi comes up with a lob there, but the ball going over the goal line. Tamil Nadu wasting a lot of moves by some very wayward and weak shooting over here, and the substitution being effected over here with the number 20 for Orissa coming in. Prem Lisa Lugun coming up to take a position on the field over there, and let's see how much she can do to help her team do much more than what they've already done. They put up a tremendous fight back, no doubt about that, but can they do better? Can they go into the final and challenge Manipur for the title? Let's see how much they can do. Time running out for both the teams over here before they head into the extra time. Right now the ball deep inside the Tamil Nadu territory, cut away nicely by the stopper Kausalya over there, and the clearance coming right into the Orissa half. Tamil Nadu certainly under pressure. Perhaps they did not envisage this sort of a situation. Sandhya Ranganathan and still, but cut away nicely there by the midfielder for Orissa, that is Jasoda Munda, working tirelessly there, and still the number 19 for Orissa, but cut away challenge there by Pavitra, pushes the ball down the left flank for Mahalakshmi. Mahalakshmi, the number 18, with the ball there on his screen. Into the penalty box she goes, comes up with a cross there for Sandhya Ranganathan, number 7, who comes up with a left-footed shot. This could be quite a close thing over there, but the lob on the far side for P. Sandhya travelling over the goal line over there, and another goal kick to Orissa. As I told you, Tamil Nadu wasting a number of moves with some wayward lobs and weak shots directed straight to the goalkeeper, but nevertheless they've not been able to translate them into goals. And at the moment the scoreline still reading
Tamil Nadu 2, Odisha 2. What's in store in the end in this match? A very interesting tussle going on here. The second semi-final of the women's football competition of the 36 national games. Pyari Chasa with the ball over there in a duel with the stopper, the tall stopper for Tamil Nadu. But Lavanya managing to put the ball over the line for a throw-in. Taken quickly over there once again. Pyari Chasa with the ball, but again hemmed in by the Tamil Nadu players. The clearance comes deep into the Orissa territory, but straight to Supriya Ratre. Puts the ball over. Regaining it there is the midfielder Jasoda Munda on your screen over there. And now still coming up with a lob to the unmarked Satyavati on the right flank, but cut away by the wing back Pavitra, who puts it over the line, as you see on your screen, for a throw into Orissa. Orissa piling up some pressure on the right flank, mainly with Satyavati Khadia doing a good job of running into open spaces and providing some centers, and she managed to conjure up the equalizer as well for her team. And this time losing out there to the number 10 for Tamil Nadu, that's Nandini, who tries to work the way, ball up on the right, but only as far as the Orissa defense, which clears it away. Once again, Banna Kabiraj, and now a long lob there from the right flank into the center of the field. Time ticking away for both the teams. Just about a minute or so left in the regulation time before the added on time comes into effect over here. That clearance from the right by Durga P, taken possession of there by the Orissa midfielder. That's Supriya. Lob into the box here. An attempt to turn it around, but unsuccessful. There is the number 19, that's Jasoda Munda. Orissa coming up with the lob on the right flank, intended far too fast and deep for a comfort there, and it is Jasoda Munda unable to get to it. A throw into Tamil Nadu from inside their own territory. 4 minutes of added on time. We are into it, and let's see how much the teams can do to conjure up the match winner, if at all. Yes, Mahesh. एडेड ऑन टाइम जो कि इंजरी का टाइम होता है उसे ऐड किया गया है। 4 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। देखना है कि दोनों टीमें जो इस समय 2-2 गोल के साथ बराबरी पर चल रही है, यहाँ पर निर्णायक क्षणों में कौन सी टीम अपने टीम को यहाँ पर जीत दर्ज कराती है। बहुत ही समतुल्य ये मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। पहले 45 मिनट के खेल में तमिलनाडु की टीम ने अपना दबदबा यहाँ पर बेझिझक दिखाया था, लेकिन उसके बाद में सेकेंड हाफ का खेल जैसे ही शुरू हुआ, वहाँ पर न जाने कौन सी जड़ी बूटी का स्वाद लेकर उतरी उड़ीसा की टीम, और तो निश्चित रूप से वहाँ पर फिर उड़ीसा की टीम ने वहाँ पर बराबरी की और दोनों ही टीमें यहाँ पर 2-2 गोल के साथ बराबरी पर है। और जैसे कि सूचनाएं मुझे मिली हैं उसके हिसाब से अगर दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर पर रुकता है ये अतिरिक्त 4 मिनट के खेल में, तो शूटआउट के जरिए यहाँ पर पेनाल्टी शूटआउट के जरिए ही इस खेल का नतीजा निकलेगा कि कौन सी टीम यहाँ पर जीतने जा रही है। लेकिन मानना पड़ेगा एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, हमारे दर्शक जो चिपके हुए हैं इस कड़े मुकाबले को देखने के लिए अपने टीवी सेट के जरिए, मैं उनसे निश्चित रूप से मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि इस मुकाबले का निर्णय अगर बराबरी पर रुकता है ये अतिरिक्त टाइम में, तो उसके बाद में शूटआउट के जरिए यहाँ पर इसका निर्णय होगा और देखना होगा कि कौन सी टीम फाइनल में जाकर मणिपुर के सामने वहाँ पर संघर्ष करती है। इस बार आगे बढ़ते हुए वहां पर 7 नंबर की खिलाड़ी संध्या रंगनाथन, जिन्होंने पहले मिनट में वहां पर पहले गोल किया था दूसरे मिनट में, और उसके बाद यहां पर ये गोल किक लेते हुए खिलाड़ी ओडिशा की गोलकीपर इस समय स्पंदिता दास, और यहां पर पोजीशन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई पवित्रा डिफेंडर जो कि तमिलनाडु की है। दोनों तरफ से लगातार अब यही कोशिश हो रही है कि अब किसी तरह से ये खेल ये देखना होगा कि कौन सी टीम यहाँ पर जीत रही है। बिल्कुल समान चलता हुआ ये मुकाबला, ये नहीं कहा जा सकती कि इस हाफ में जो एक बढ़त यहाँ पर जो ओडिशा के खिलाड़ियों ने दिखाई थी, गर्मजोशी दिखाई थी, वो गर्मजोशी यहाँ पर तमिलनाडु की टीम नहीं दिखा पाई। राइट शोर से आक्रमण करने की तैयारी में वहाँ पर सत्यवती खाड़िया, लेकिन सफल नहीं हुई, और वहाँ पर सामने उनके 2 खिलाड़ी इस समय जसोदा मुंडा, और अब जाकर जो पोजीशन ले रही हैं वहाँ पर
प्रेम सिला लुगुन, उन्होंने गेंद को पास करने की कोशिश की वहां पर अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास, उनका थ्रू पास इसमें पेनल्टी बॉक्स के बिल्कुल सामने वहां पर जसोदा, और जैसे कि वहां पर तेजी के साथ आगे निकलकर सौम्या नारायण स्वामी जो कि कप्तान है, गोलकीपर है, उन्होंने सारी संभावनाएं खत्म की। जो बढ़त लेने की वहां पर जिज्ञासा प्रज्वलित हुई थी, आशाएं प्रज्वलित हुई थी, उसे बुझा दिया वहां पर। और इस बार आक्रमण चलता हुआ जब तक कि महालक्ष्मी वहां पर दाहिने छोर पर उन्होंने पास दिया, और खिलाड़ी वहां पर इस समय पोजीशन लेने की कोशिश में थोड़ा सा संघर्ष दोनों खिलाड़ियों के बीच में पोजीशन को लेकर, लेकिन बाएं पैर से जो पेनाल्टी बॉक्स के अंदर उन्होंने दागा था उसे पहुंचने नहीं दिया, और अच्छा डिफेंस किया वहां पर, बचाव किया अपने इस शॉट से खिलाड़ी में। इस बार फिर आक्रमण पर तमिलनाडु की टीम, और बैक पास, और उसके बाद में बाएं तरफ से इस समय आक्रमण पर वही खिलाड़ी महालक्ष्मी जो आई हैं, उन्होंने आगे की तरफ बढ़ाया, लेकिन यहाँ पोजीशन बिल्कुल हमारे कॉम्बिनेट बॉक्स के नीचे आकर जाता रहा। तो थ्रोइंग इस समय लेने के लिए वहाँ पर पवित्रा तमिलनाडु डिफेंडर। अब बहुत नज़दीकी बात, समय धीरे धीरे आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है, और ये समाप्ति की यहाँ पर विशल ब्लो हुई है। इसके साथ फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। In that part of the area, don't go to the other part, don't allow Haryana to go there. यकीनन तौर पे मिलिंद ज्यादा से ज्यादा इस समय प्रतिद्वंदी टीम के शूटिंग सर्कल और 5 मीटर रेखा के पास इस समय डॉटेड लाइन में, लेकिन वापस से बहुत बढ़िया इस समय बचा मोनिका मलिक। ये वो नाम है लंबे समय से भारतीय हॉकी में। मोनिका मलिक ने गेंद को इस समय क्लियर किया, और एक बार फिर से बॉल चली गई बैकलाइन से बाहर। फ्री हिट मिलेगा झारखंड को। बचे हुए आखिरी 5 मिनट में ये मुकाबले की सेमीफाइनल की राह सुनिश्चित होगी कि फाइनल में कौन जाएगा, और फाइनल में जाएंगे मिलन तो वहां से मेडल पक्का होगा। फिलहाल इसी बीच 7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी बेहतरीन स्किल दिखाती हुई शर्मिला देवी, इंटरनेशनल प्लेयर, लेकिन इस बार गोल पोस्ट के अंदर नहीं डाल सकी। Yes, missing what was a sitter, because Sonal Minj on the far right corner of the goal post, virtually 3/4 of the goal was open out there for Sharmila Devi to slam it in, but wasn't to be. Haryana leading by 4-2 here with 4 minutes of play remaining here in the fourth and the final quarter of this, the first semi-final between Haryana and Jharkhand. Super match on a super Sunday, because as we've been saying out here, the clock, the official clock shows 4 minutes and 7 seconds remaining. So in that 4 minutes and 7 seconds, Jharkhand has to equalize. After that, it could be anyone's game. पहले बराबरी करना चाहेगी झारखंड की टीम। बिल्कुल बेहतर फरमाया आपने, वो गति, वो बेहतर स्किल, बॉल कंट्रोल। हरियाणा के खिलाड़ी अपना संपूर्ण समर्पण देती हुई। नवनीत कौर इस टीम के एक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नवनीत कौर थी वहां पे। 119 इंटरनेशनल मुकाबले। Remember the other point that we should be talking about as we watch Jharkhand attacking well, is that the Haryana girls are so strong. Big shoulders, strong legs, and look at Jharkhand there. Wily people, short people, but how strong they have been in the field. कहते हैं मिलन कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। यकीनन तौर पे देखिए इस समय बिल्कुल अहम बात है, फिजिकली जिस तरीके से हरियाणा की टीम काफ़ी मजबूत है शारीरिक तौर पे, लेकिन उससे मुकाबला करती हुई जज्बे से, जोश से, प्रतिबद्धता से, और फिलहाल यहाँ से ये अच्छे संकेत झारखंड के लिए नहीं मिले। प्लेंटी कॉर्नर मिला हरियाणा को। In English we use a word called belief, self-belief, and I think Jharkhand has gone into this match with self-belief. I'm not even going to talk of who's going to win this particular match with close to 3 minutes to go, while Haryana has got that important penalty corner. But the self-belief in Jharkhand tells this nation
that have the self-belief, everything is possible. यकीनन तौर पे खुद पे विश्वास सफलता के लिए बहुत अहम। फिलहाल इस पेनल्टी कॉर्नर पे नजर डालते हैं मैच ऑफिशियल्स के विसिल। बता दें आज के मुकाबले की अंपायर दुर्गा देवी और केटी लाल हिमपुली, जो कि मिजोरम की वापस से पेनल्टी कॉर्नर लेंगी, क्योंकि जो रूल है हॉकी का, जब तक बॉल वहां से इंजेक्ट न की जाए तब तक कोई भी डिफेंडर गोलकीपर के अलावा अंदर पहले नहीं आ सकते। खतरा टल गया है इस समय झारखंड के लिए। सोनल मिंज जूनियर इंडिया खेल चुकी गोलकीपर, लेकिन ये सेमीफाइनल हॉकी का पेनल्टी कॉर्नर। बहुत बढ़िया बचाव, क्या कहने सोनल मिंज की। मिलन क्या कहेंगे इस बचाव? अपने गोल पोस्ट का बचाव कर पाएगा, और देखने लायक बात होगी। वहां पर ओडिशा की खिलाड़ी जो इस किक को लेने के लिए तैयार हैं, वो हैं इस समय सामने की छोर पर यहाँ पर 19 नंबर की जर्सी पहनी हुई जसोदा मुंडा, और सामने उनके बदलाव के तौर पर राजेश्वरी दास, जिन्हें इस किक के लिए खास तौर पे लाया गया है। और पहला गोल वहां पर करती हुई, बढ़त हासिल करती हुई वहां पर ओडिशा की टीम 1-0 की बढ़त। सीधे उन्होंने गेंद को पास किया था, और जो बदलाव के तौर पे वहां पर कोशिश सौम्या नारायण स्वामी ने की थी, वो नाकामयाब रही, और 1 गोल की बढ़त हासिल है यहाँ पर ओडिशा के सामने। Orissa managing to convert their first kick over here. Jasoda Munda beating the Tamil Nadu goalkeeper to the right, coming up with a nice firm placement, and Soumya Narayan Swamy not being able to stop it. So let's see what the substitute goalkeeper for Rajeshwari Das can do for Orissa with this first penalty kick for Tamil Nadu being taken there by the number 2 for Tamil Nadu, Durga P, the number 2. It's 1-0 as far as Orissa is concerned. There it is, the goalkeeper in position. And here is Durga. All set. All eyes on the goalkeeper as she tries to concentrate and ensure that she does find the net either to the left or the right of the goalkeeper, or possibly put it in the center. One remains to be seen. Will she do a Pananka? There she is. Here goes the whistle. Durga, and that has been blocked. Yes, Rajeshwari Das doing the trick for Orissa, diving to her left to block that very feeble attempt there from Durga, and Orissa keep the 1-goal lead that they have achieved as a result of converting the first kick by Jasoda Munda. Yes, Mahesh. बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत धीमे से, बहुत आसानी के साथ वहाँ पर दुर्गा ने ये किक ली थी। कोई उसमें फोर्स नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, और वहाँ पर जो बदलाव के तौर पे राजेश्वरी दास गोलकीपर आई हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। ओडिशा के खिलाड़ी ने अच्छा बचाव वहाँ पर किया, और यहाँ पर स्ट्रेचर बीच मैदान पर गया है। शायद किसी खिलाड़ी को वहाँ पर दिक्कत है, किसी तरीके जो सूरज की गर्मी काफ़ी तेज़ है बीच मैदान। 50 सालों से जो बना हर मेज की शान, वो है अमूल चीज। हर दस्तरखान पे बनाया अपना अलग मकाम, वो है अमूल चीज। कहीं लूटी शाही वाहवाही, तो कहीं बना दिल की जुबान, वो है अमूल चीज। भारत की लजीज विरासत का एक अजीज नाम, वो है अमूल चीज, जिसे हर किसी ने प्यार से कहा, ये मेरा चीज है। Tamil Nadu also making a change in the goalkeeper at the moment over here, with Devi D coming in to take the place of goalkeeper Soumya Narayan Swamy. So there it is, the substitute goalkeeper Devi D for Tamil Nadu in the goal over here to face the second kick from Odisha. Possibly Soumya was hurt as she tried to dive to the left to stop that one earlier in the game, but this time it was a lovely save by Rajeshwari Das, the substitute goalkeeper for Orissa.
And this time also Tamil Nadu now bringing in the substitute goalkeeper Devi D. And let's see how much she can do to bring Tamil Nadu back in the game in this tiebreaker over here. The scoreline at the end of regulation time was 2-all. In the shootout it is Orissa 1, Tamil Nadu 0. Orissa in the lead for the very first time in the match, so to say. And let's see how much they can do to keep the momentum going, convert the remaining kicks and storm into the final to challenge Manipur for the title. They still have a long way to go. It's still anybody's game. A lot of pressure on the substitute goalkeepers. Rajeshwari Das doing her team a very good turn, blocking that effort from Durga. And can Devi D do the same for her team and bring them back into the game over here? There she is on your screen. The Tamil Nadu substitute goalkeeper Devi D, all set to face the next penalty kick over here in the shootout. Looks as though it's going to be Orissa's Julie Kishan with the ball over there, the number 5. The assistants over there waiting for the game to restart, for the kicks to be taken. As a player injured in the center of the field, possibly the goalkeeper needing some attention. All the medical team over there attending to her in the center of the field, in the center circle. And the game held up for a brief while with the goalkeeper warming up there in all blue, as you can see her on your screen. The Tamil Nadu substitute goalkeeper being brought in, Devi D, who's replaced, it's the number 9 for Tamil Nadu, Doordarshan, who was being stretchered off the field. And she needed some medical attention over here. And all set for the shootout to resume with the goalkeeper in position over there. It looks like it's the number 5, Julie Kishan. We'll know in a moment. The referee, Kanika Burman, over there, ensuring that everything is in place before she resumes the shootout. There she is having a word with the Orissa players to ensure that they don't rush out to celebrate the scoring of a goal or not. And the 4th official also having a word with the Orissa bench. And the referee, Kanika Burman, having a word with the Orissa team lined up here in the center circle as she goes back to resume the shootout. Looks like it's the number 5, Julie Kishan, with the ball over there. There she places it at the spot, the 12-yard mark from the goal line. Yes, it is Julie Kishan, the number 5 on your screen over there, to take the second penalty kick for Odisha. And on the line over there in the goal is Devi D. All set, waiting for the referee's whistle. Here it goes, and in comes. Oh yes, a nice placement over there. Sent the goalkeeper the wrong way and scored, managing to give Orissa a 2-0 lead here at the moment. And this is going to be certainly putting Tamil Nadu under a lot of pressure over here. And let's see how much the substitute goalkeeper can do to save the situation once more for Orissa. Rajeshwari Das on the line over there. Pavitra with that kick, the number 14 there on the screen for you. Yes, Mahesh. वहाँ पर अब इस समय देखना है कि क्या इस बार दूसरे प्रयत्न में यहाँ पर तमिलनाडु की इस 14 नंबर पवित्रा ये यहाँ पर बचाव करती हुई काफी तेजी के साथ किक लिया था और क्या बदलाव किया वहाँ पर गोलकीपर के जरिए ओडिशा के खिलाड़ियों ने। निश्चित रूप से 2 प्रयत्न यहाँ पर विफल होते हुए नजर आए जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है।
कितना आसान होता है वहां पर गोल पोस्ट में दागना, लेकिन राजेश्वरी दास ने, और यहाँ पर The ball coming off the right upright there, Mahesh, and unfortunately for Pavitra, the ball did not go in. It just bounced back after striking the upright. The third kick, so the Orissa goal surviving a charmed life over here. They are up by 2 goals, and it's the number 9 for Orissa, Doordarshan, who scored the first goal, to take the third kick. Here she comes, and she puts the ball into the net to the left of the goalkeeper, and Orissa taking a 3-0 lead here in this tie shootout, with all the 3 attempts being successful, and Tamil Nadu not scoring even one of the 2 they have already had. A third attempt coming up over here, and if they don't succeed, that will be the end of the challenge for Tamil Nadu, with the number 3, I think, on your screen, Kausalya, coming up to take that third penalty for Tamil Nadu. All eyes will be on her. Yes, Mahesh. कौशल्य का प्रयत्न, अगर ये प्रयत्न विफल रहा तो यहाँ पर निश्चित रूप से उड़ीसा की टीम को विजयी घोषित किया जाएगा। देखना है कि क्या ये बदलाव राजेश्वरी दास रोक पाएंगे नहीं, और ये प्रयत्न विफल रहा, और इसके साथ ही यहाँ पर ये मुकाबला यहाँ पर उड़ीसा की टीम ने जीत लिया है 3-0 से पेनाल्टी शूट आउट में। वहाँ पर गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से वहाँ पर उड़ीसा के बदलाव किए गए, राजेश्वरी दास ने ज़्यादा संघर्ष किए बिना ही वहाँ पर जितने किक लिए गए तमिलनाडु के जरिए, मैं समझता हूँ कि सारे विफल रहे।